Hey guys, recently a month ago, I just completed my Java mini project. So it was quite fascinating to me because idea was quite unique. So I just wanted to share this thing also with you guys. So here I am with my PPT और PPT मैंने आज ही बनाई क्योंकि कल सबमिशन था इसीलिए ठीक है सो यस दैट इज़ इट और अभी भी इसका रिपोर्ट बताना बाकी है तो अभी वो भी करेंगे इसके बाद फाइन चलो देन लेट्स गेट स्टार्टेड सो द नेम ऑफ माय प्रोजेक्ट इज लेजी बिस्ट एंड यू विल गेट टू नो further why it is lazy beast because both of the words are quite opposite to each other, right? So you will find it out. Fine. So now, talking about the current scenario, and you know, this is something like giving the contrast of the project. So yes, talking about the current scenario, like every day, each and every person is right now moving from traditional pen and paper thing to the digital system. I mean, everyone is having, for now, their personal laptops and personal desktop for doing their work and maintaining the records and all that stuff, I can say. Yes, so that is it, and because of which companies are basically improving their GUIs gradually. Like the ones who are not knowing what is GUI, so GUI is graphical user interface. So whatever you can see in this screen on the screen is basically a part of a graphical user interface. So the just simply imagine anything where you can click and you can do the operation is the part of your GUI. Just remember this thing, and whenever you have to type the commands and perform the operations, then understand that that is the command line interface, that is CLI, right? So keep this thing in mind. जो आपको पूरा नहीं, वो जो ब्लैक स्क्रीन के अंदर वो ऐसे कमांड्स बवांड्स लिखते हैं ना, सब लोग ऐसे कूल दिखाने के लिए लगते हैं वही लोग। हाँ, तो उसको CLI बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। फाइन, मूविंग फर्दर दैट हाँ, एक और चीज़ है कि डे बाय डे ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है, लाइक GUI इज गेटिंग बेटर एंड बेटर दिस डेज। सो पीपल मतलब किसी को अभी ज़रूरत ही नहीं है कुछ कुछ भी चीज़ सेटअप करने के लिए टू यूज़ द CLI थिंग। ठीक है, अभी कोई आपने अभी अभी शायद से कई लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना होता कि CMD क्या चीज़ है। ठीक है, वो लोग विंडो यूज़र्स 3-4 साल से यूज़ करते हैं लेकिन दे डू नॉट नो व्हाट इज़ CMD। ठीक है, मतलब CMD is a command prompt for the Windows, and it is an executable. I mean, you can say it is a software which is command line and which is used to type the commands, which is used to type the commands and perform the operations accordingly। ठीक है, आप मतलब जो भी चीज़ GUI से कर सकते हो, you can do the same things with CLI thing, but the thing is you have to type manually commands for each and everything। Like if I, let's say if I want to close this thing, then I have to type the command for closing this program। So मतलब it is quite difficult to remember all that commands, and typing all that commands is like a burden for a lot of people, I can say। ठीक है, so for that thing GUI was made, and it is improving day by day to basically you can say that to increase more, giving more keeping it more user friendly, the GUI support as well as GUI performance, even you can say that GUI graphics and all these things are increasing day by day। Fine, and so far so good. What I have to say is that yes, so anyone right now is not using CLI, ठीक है। बट व्हाट आई हैव टू से इज दैट कई बार हमारी मतलब वी गेट इनटू सच प्रॉब्लम्स वेयर वी कैन नॉट यूज GUI। वी हैव टू कंपल्सरीली यूज CLI फॉर डूइंग दोज ऑपरेशंस। कई बार ऐसी कंडीशन अराइज हो जाती है कि हमें GUI का सपोर्ट कोई जगह पे नहीं मिलता है, तो फिर हमें CLI से हमारा काम करना पड़ता है। तो सी इट इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग टू लर्न बेसिक कमांड्स ऑफ द CLI,
मतलब मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 99.9% आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ेगी। मतलब अब अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर हो, मतलब एंटरप्रेन्योर हो, या फिर you know for doing those sort of basic operations you would never use CLI for the same। लेकिन let's say आपको लिनक्स सीखना है, ठीक है, तो फिर for the linux most of the operations are based on the CLI। See, I am not saying see right now the Linux distributions are also improving day by day, and giving a lot good graphical user interface. Fine. So see, graphical user interface is increasing, but what all I have to say is that, see, there might be some of the conditions where you have to compulsorily use the CLI. So for that thing, you could just learn some sort of the basic commands and you can do the operations for the same. But this was the main thing why I made this project of mine, कि लेट्स अगर मैं अगर जानूँ, देन आई नो कि मुझे जो भी ऑपरेशन करना है मैं आसानी से कर सकूँगा, और जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आती है वो चीज़ शायद से मैं गूगल कर लूँगा, या फिर देर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज राइट नाउ ऑन द इंटरनेट गाइस, सो यू कैन जस्ट सर्च फॉर इट and you can get the results for the same, and you can do the operations in that way। but ये तो कैसी चीज़ हुई कि आई एम कंफर्टेबल विद दैट, ठीक है। हर कोई इस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं होता है कि जब भी हमें कमांड लाइन ऑपरेशंस करना है तो हर कोई इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं होता है। आधे लोगों को तो वो ब्लैक स्क्रीन से ही उतना उतना डर लगता है कि भाई, अरे भाई ये हमारा काम नहीं है, ये किसी और से करवा लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के मैंने ये मेरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है, कि टू मेक दिस CLI थिंग इन अ लॉट ईजियर वे, कि आपका जो हेडेक है ना ये CLI का, वो पूरा कम हो जाएगा। अभी मैंने ये मेरा अभी तक का प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ के लिए बनाया हुआ है, कि अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो और उसमें भी स्पेसिफिक, अगर आपको कमांड लाइन से कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं तो आप इससे इजीली परफॉर्म करवा सकते हो, ठीक है। सो लाइक दैट आई हैव केप्ट दिस थिंग, फाइन। Okay, then moving further, talking more about the project। So talking about the introduction thing, so हाँ, so मैंने मेरा प्रोजेक्ट का नाम लेजी बिस्ट क्यों रखा, क्योंकि बिस्ट इज ए टाइप ऑफ एनिमल विच इज वेरी डेंजरस, and lazy means, you know that lazy means lazy, right? वही लेम पड़े हुए हैं एंड ऑल, जो भी इंसान जिसको कुछ भी काम नहीं करना और बस ऐसे पड़े रहना है, यू कैन दैट थिंग ऑफ राइट। और लेजी प्लस डेंजरस, ठीक है। तो अगर आप मेरे जैसे अगर लेजी हो और कुछ भी मतलब बहुत बड़े बड़े ख्वाबों सोच रहे हो, लेकिन हमें अगर कुछ मतलब कुछ आता नहीं है और हम ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं, तो फिर यही टूल है जो मैंने बनाया हुआ है, कि आप मतलब एकदम लेज़ी हो और आपको काम बहुत ज़्यादा डेंजरस करने हो, मतलब डेंजरस इन द सेंस बहुत बड़े बड़े काम करने हो, लाइक, ठीक है आपको। और वही बड़े बड़े काम किसमें होते हैं, कमांड एंड इंटरफेस में होते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, ये कमांड्स रिमेंबर करना और ये सारी चीज़ें। देखो मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट थी पर्सनली, जब मैंने भी मतलब बहुत स्टार्टिंग में पहले सीखना जब चालू किया था, तब मुझे भी डर लगता था कि अरे बाबा, CMD खोलना है और उसमें कमांड्स टाइप करनी है, दैट वाज सच ए हेडेक फॉर मी आल्सो at the times। but gradually you get improvement when you are into the field, fine। Okay, so moving back to the point, and so that is why I kept my project's name is lazy beast। And see, it is now talking further more about what is actually the lazy beast। तो देखो, आपने अगर अपनी लाइफ में कभी भी CMD खोला है तो आपको पता होगा कि CMD किस लिए होता है, ठीक है। CMD में आप कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हो, आप क्या क्या नई चीज़ें इससे कर सकते हो। कई बार ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में कहीं ना कई बार तो ऐसी हुई होगी कि हमारा कोई प्रोग्राम रन नहीं करना है कर रहा है, या फिर हाँ, ये सबसे ज़्यादा यूज़ चीज़ हो सकती है किसी किसी में भी,
कि पेन ड्राइव करप्ट हो गया हो और हमने वो डिस्क पार्ट खोल के पेन ड्राइव को सही किया हो। ये तो मतलब 100 में से मतलब 60 लोगों ने तो किया ही किया होगा उनकी लाइफ में, कि डिस्क पार्ट ओपन करके वो जो करप्ट यूएसबी स्टिक होती है उसको हम लोगों ने सही किया है क्लीन और फॉर्मेट वगैरह करके, ठीक है। तो ये तो मतलब काफ़ी लोगों ने किया होगा, और अगर नहीं किया है तो वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थिंग है कि जो चीज़ सही नहीं चल रही है उसको अच्छे से करने के लिए। या फिर कई लोगों ने वो भी शायद से की हो, शायद से आपने भी की हो कि वो टास्क हम जैसे टास्क मैनेजर खोलते हैं और टास्क मैनेजर में से एंड टास्क कर देते हैं जो भी प्रोग्राम रन नहीं करता है। तो उसी तरह से ए पीआईडी होती है हर एक प्रोसेस। देखो, जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी चीज़ें रन कर रही होती है, दैट इज़ बेसिकली ए प्रोसेस, एंड इट कंटेन्स मैनी ऑफ द सब प्रोसेसेस बिहाइंड इट, ठीक है। सो आप जो भी प्रोग्राम रन कर रहे हो और वो अगर रन नहीं होता है तो वो आप मतलब अच्छे से रन नहीं कर रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग आ जाता है जो भी विंडोज़ यूज़र है उसके लिए। तो उसमें क्या होता है कि वी कैन मैन्युअली क्लोज वी कैन नॉट मैन्युअली क्लोज दैट प्रोग्राम, और मतलब सिस्टम पूरी फ्रीज हो जाती है, चिपक जाती है सिस्टम, कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। इन ओल्ड डेज वी यूज टू प्रेस कंट्रोल अल्ट एंड डिलीट एंड वी यूज टू गो टू द लॉक स्क्रीन, एंड फिर लॉक स्क्रीन से हम वो टास्क मैनेजर खोलते थे एंड वी यूज टू डू दैट कि चलो भाई इसको एंड टास्क कर देते हैं। लेकिन अभी तो वैसे शॉर्टकट भी आ गया है कि अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप दबाओगे देन डायरेक्टली टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है, और आपको जो भी टास्क बंद करनी हो, लाइक से मुझे भी टास्क मैनेजर ही बंद करना है, तो मैं यहाँ से एंड टास्क कर दूंगा और वो चीज़ बंद हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब वो भी आप चीज़ कर सकते हो। अभी ये सेम चीज़ आप CMD में से भी कर सकते हो, और इन ए क्वाइट ईजी, मतलब अगर आपको कमांड्स आते हैं तो इन ए क्वाइट ईजी वे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मतलब आपको जो भी चीज़ें वॉट एवर ऑपरेशन यू वांट टू रन यू कैन रन फ्रॉम द CMD, ठीक है। There are many much more advanced operation which for that thing PowerShell is there, which was developed by Microsoft. So ये भी है, लेकिन for now let us focus on CMD only, कि old good friend of ours, simple old good friend of ours, उसी से हम शुरुआत करते हैं। फाइन, तो ये सारी जो कमांड्स होती है, अभी मैं भी पॉइंट पे नहीं आ रहा हूँ। सो back to the point, and what exactly what I have done is that जो भी हमें कमांड्स याद करनी पड़ती है वो मैंने क्या किया है कि आई हैव क्रिएटेड शॉर्टकट्स फॉर एवरी कमांड, कि आपको कोई भी कमांड याद रखनी नहीं है अभी भी। यस, यू हर्ड मी राइट, कि आपको कोई भी कमांड याद नहीं रखनी है, और आप वो सारे ऑपरेशंस सिर्फ वो आप मेरे शॉर्टकट से आप कर सकते हो। और शॉर्टकट्स भी पता है कैसे है कि लेट्स से आपको क्लियर स्क्रीन अगर करनी हो CMD में तो उसके लिए है CLS कमांड, और वो अगर आपको याद नहीं है तो मैंने दो टाइप के इनफैक्ट मैंने 3 टाइप की कमांड्स रखी है। और एक है, आप अगर सिर्फ C टाइप करते हो देन आल्सो स्क्रीन विल बी क्लियर। अगर आप क्लियर CLEAR क्लियर टाइप करते हो देन ऑल्सो स्क्रीन विल बी क्लियर। और अगर आप वन टाइप करते हो देन ऑल्सो स्क्रीन विल बी क्लियर, ठीक है। और मैंने क्या किया है कि जितने भी मैंने कमांड्स रखे हैं मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर, उसमें मैंने सबके नंबरिंग्स दे दी है। तो अगर आप वो नंबरिंग्स भी अगर यूज़ कर दोगे देन ऑल्सो ऑपरेशंस विल बी डन। आप ये सिर्फ 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 समझो कि आपको क्या अभी करना है, पता है कि मैंने जिस तरह से मेरी कमांड्स बनाई है वो कमांड्स के सिर्फ आपको नंबरिंग देखना है, और वो भी आपको याद नहीं रखना है। अगर आप एच या फिर हेल्प टाइप करोगे देन पूरा उसका डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगा एक बार में, और आप उसमें हर बार देख सकते हो कि आपको कौन सी चीज़ करनी है। तो मतलब अभी मैं ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि आधे लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द फीचर्स ऑफ इट एंड देन फाइनली देन गेट इनटू इट, ठीक है। फाइन, now talking about features, so it is basically the easy to remember shortcuts मैंने रखे हुए हैं इसमें। फिर हेल्प एंड यूसेज फॉर एवरी शॉर्टकट, कि जो भी मैंने कमांड्स रखी है उसके मैंने ऑलमोस्ट सारे कमांड्स के लिए मैंने उसकी हेल्प कमांड रखी हुई है, कि अगर मान लो कि आपको ये कमांड समझ में नहीं आती है तो फिर फॉर द सेम आई हैव कीप द हेल्प थिंग, और वो आपको मतलब पूरा हॉलिस्टिकली दिख जाएगा कि हर एक चीज़ के लिए क्या क्या चीज़ है। ऐसा मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी कि जो आपको समझ में ना आए। देन हाँ, ये सारी अभी देखो, अभी जितने भी ऑपरेशंस आ रहे हैं दैट आर मतलब insane, I am literally saying you that are insane. If
इफ़ यू हैव नेवर यूज CMD तो मतलब आपको ऐसा ही लगेगा कि ये मतलब योर माइंड विल बी ब्लोन फॉर नाउ कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती है ये चीज़ से, ठीक है। So yes, you will be able to open and close any of the program in your system। मतलब आपके प्रोग्राम में जो भी सॉफ्टवेयर रन कर रहा है वो आप सिंपली मेरे वाले टर्मिनल से आप क्लोज कर सकते हो। और मैंने देखो मैंने कोई भी इसमें नई चीज़ नहीं की है, ये सारे ऑपरेशंस आप सिंपल CMD में से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने ये टास्क ईजियर बनाने के लिए मैंने ये पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि जिसको भी मतलब CMD से मेरे जैसे पहले डर लगता लगता हो अभी भी, वो काफ़ी ईजिली इसको लर्न कर सकता है। और आप अगर इसको एक बार अच्छे से लर्न कर लोगे, ये तो मतलब ये तो इसमें तो कुछ लर्न करने जैसा है भी नहीं। आप अगर एक बार देखोगे ना तो भी आप मतलब इजीली सब कुछ सीख ही जाओगे। then मतलब if anyone wants to start with learning the CMD thing, then they could also start with this of my project। and आपको मतलब थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा कि ऐसी भी चीज़ें होती है। you will find it interesting because much of the thing I have kept it on a application side, ठीक है। मैंने जितनी भी चीज़ें इसमें रखी है ना उसके कुछ ना कुछ एप्लीकेशन है। अगर आप ऐसे नॉर्मल CMD अभी खोल के रखोगे ना तो मतलब अगर आपको कुछ भी काम नहीं हो तो मतलब आप कुछ नहीं कर सकोगे। मतलब यहाँ तक कि आपको मतलब कुछ बहुत सारे कूल कमांड आपको अगर नहीं पता है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। बस ऐसे आप खोल के बैठ जाओगे और वेट करोगे जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसकी, ठीक है। या फिर आप अगर नेक्स्ट से इंस्ट्रक्शन देख रहे हो वो टास्क परफॉर्म करने की, तो आप मतलब वो देखोगे, इतना काम करोगे और बंद कर दोगे। लेकिन टू मेक इट इंटरेस्टिंग आई हैव डन दिस थिंग, ठीक है। So yes, moving back to features, you will be able to open and close the programs from the same terminal of mine which you will be opening, fine। Then you will be able to modify the console। देखो there comes the thing, आपने कभी देखा है कि आपने अपना खुद का अगर CMD खोला है तो आपको वही जनरली ब्लैक और वाइट स्क्रीन आपको दिखे, ब्लैक स्क्रीन दिखेगी और उसमें वाइट कलर का आपको टेक्स्ट दिखेगा, ठीक है। अभी तक आपने सिर्फ यही चीज़ देखी है। लेकिन अभी आप देखोगे कि आप उसके कलर्स भी बदला सकते हो, उसके बैकग्राउंड कलर आप बदला सकते हो, उसका उसके उसके फोरग्राउंड फोरग्राउंड मतलब कि उसका जो टेक्स्ट का जो वाइट कलर होता है वो वाइट कलर भी आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। और आप उसका प्रॉम्प्ट भी बदला सकते हो। प्रॉम्प्ट मतलब देखो आपको दिखाता हूँ मैं आपको। आप अगर जनरल यहाँ पे रन ओपन करके आप अगर CMD टाइप करोगे तो ये तो देखो, ये तो आपका देखो, ये मैंने थोड़ा बहुत अपने आप से मॉडिफाई किया हुआ है। लेकिन आप अगर देखोगे देन देखो आई एम एबल टू चेंज माई कलर्स फ्रॉम दिस, ठीक है। और जो बेसिक आप अगर ऐसे कलर टाइप कर दोगे देन आई विल बी बैक टू माई डिफ़ॉल्ट कलर। अभी के लिए मैंने मेरा डिफ़ॉल्ट कलर यहाँ पे एक्वा ब्लू सेट किया हुआ है। अब जिनको पता नहीं था कि ऐसा भी होता है उनके लिए तो मतलब ये चीज़ इनसेन होने वाली है। मतलब जिसको पता भी है उसके लिए भी, क्योंकि मैंने मेरे ऐप में सिर्फ इतना ही नहीं रखा है। देखो अब अगर आप कलर स्लैश ये करोगे तो आपको यहाँ पे सारी उसका यूसेज मिल जाएगा कि आप इस कमांड को क्या क्या चीज़ें इसमें आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्लैक के लिए हमको 0 यूज़ करना है। और अगर हमें वाइट कलर चाहिए तो सिंपल वाइट के लिए हमें 7 यूज़ करना है। और अगर डार्क आई मीन ब्राइट वाइट अगर चाहिए तो उसके लिए हमें कैपिटल F यूज़ करना है। लेकिन देखो आपको मैं डिफ़ॉल्ट वाला दिखाता हूँ कि आप जब ओपन करोगे तब वो कैसा दिखेगा। कलर 07, देखो आपका डिफ़ॉल्ट वाला ऐसा दिखेगा, ठीक है। आपका डिफ़ॉल्ट वाला जो भी आप अगर CMD अभी अगर खोलोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। लेकिन इससे मतलब अभी के लिए मैं देखो अभी सीक्रेट में रिवील नहीं करूँगा क्योंकि आप जब देखोगे तब आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ठीक है। लेकिन डिफ़ॉल्ट ही अगर आप अगर ओपन करते हो तो यही देखो यही आपको दिखेगा, ये सिंपल ये चीज़ आपको दिखेगी। और इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। ये जो आपको दिख रहा है ना अभी यहाँ पे, ये सी बाद में सेमीकोलन फिर स्लैश फिर वही यूज़र्स और फिर यूज़र का नाम और वो सारी चीज़ें, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट भी आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकोगे। जिन्होंने भी नहीं सुना था उसके लिए माइंड ब्लोन, ठीक है। और भी चीज़ है, ये जो टाइटल इसको बोलते हैं टाइटल, वॉट एवर द थिंग इज आफ्टर योर आइकन थिंग, इसको बोलते हैं टाइटल ऑफ योर सॉफ्टवेयर। वो टाइटल भी आप मॉडिफाई कर सकोगे। यस आई यू हर्ड मी राइट, यू विल बी एबल टू चेंज दिस टाइटल ऑल्सो।
आधे लोगों को मतलब ये कलर के बारे में शायद से पता होगा, लेकिन प्रॉम्प्ट और टाइटल के बारे में आई एम नॉट थिंकिंग दैट दे वुड, उनको शायद से ये सारी चीज़ें पता होगी, लेकिन यस, यू यू कुड ऑल्सो डू दैट। फाइन, मूविंग फर्दर। हाँ, तो मैंने यही चीज़ लिखी है कि उसके लिए मैंने पूरा अलग से कंसोल ही बना दिया है कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है, तो बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से आपको मैंने जो भी कमांड्स टाइप की वो आपको कोई भी कमांड्स ही टाइप नहीं करनी है, ऐसा समझ लो आप। ठीक है। और फ़िलहाल के लिए वी आर मूविंग फर्दर, और मैंने यहाँ पे बोला है कि कलर प्रॉम्प्ट और टाइटल आप मॉडिफाई कर सकोगे, दैट इज इट। फिर रन ऑल ऑफ द नेटवर्किंग कमांड्स इन ए विथ जस्ट अ फ्यू शॉर्टकट्स। अब जो भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो ज़्यादातर हमारा सी एम डी खोल के पिंग कमांड टाइप करते हैं टू चेक दैट आर कंप्यूटर इज़ एबल टू रीच दैट वेब सर्वर और नॉट, वो वेबसाइट को हम रीच कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम ज़्यादातर जो भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जब भी हम नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो वो आके पिंग कमांड से चेक करते हैं। या फिर मतलब ये तो सिर्फ मैंने एक कमांड बोली, लेकिन और भी बहुत सारे कमांड्स होते हैं। तो मैंने मेरे प्रोजेक्ट में 11 नेटवर्किंग कमांड्स रखे हुए हैं और उनके मैंने शॉर्टकट्स रख दिए हैं। मतलब आपको आपको अगर नेटवर्किंग कमांड्स भी सीखने हैं, आपको अगर नेटवर्किंग कमांड्स का भी यूज़ करना है, तो आई हैव मेक मतलब आई हैव मेड 11 शॉर्टकट्स फॉर 11 डिफरेंट नेटवर्किंग कमांड्स। कैन यू इमेजिन दैट? मतलब नेटवर्किंग कमांड्स की भी मैंने यहाँ पे शॉर्टकट्स रख दी है। मूविंग फर्दर, आप जो भी कमांड्स टाइप करोगे उसका पूरा लॉग भी मेंटेन होगा कि आपने कौन से टाइम पे, कौन से दिन पे, कौन से मोमेंट पे आपने कौन सी कमांड रन की, उसका भी पूरा लॉग रहेगा। तो फिर सिक्योरिटी फीचर भी आप देखो, वो भी मैंने मेंटेन करने की पूरी ट्राई की है कि वॉट एवर यू विल बी टाइपिंग, द लॉग फॉर द सेम विल बी मेंटेन्ड। फाइन। फिर व्हाट आई हैव सेड इज यस, अब जिनको भी आर्काइव फाइल के बारे में नहीं पता है कि बेसिकली आर्काइव क्या होता है, तो आर्काइव वो चीज़ होती है कि लेट्स से यू हैव मल्टीपल फाइल्स, ठीक है, देन एंड इफ यू वांट टू सेंड दिस मल्टीपल फाइल्स टू समवन, मल्टीपल फाइल्स टू समवन और मल्टीपल फोल्डर्स टू समवन, then generally this is a best way to send someone. If before sending someone, you just combine everything into one type of file and then you send it. और बेसिकली आर्काइव क्या होता है कि सब कुछ कंबाइन करके एक पैकेज में बंद करके वो दे देता है, और सामने वाले उसको अनआर्काइव करके, वो उसको अनआर्चिव करके वो उसको ओपन कर लेता है। लेकिन जनरली ये जो आर्काइव होती है ना, उसमें हम अपनी फाइल्स को ज़्यादातर कंप्रेस भी कर सकते हैं। लेकिन मतलब कैसा होता है कि लेट्स से योर फाइल इज़ ऑफ 1 GB, then you can compress it to it totally depends on what type of file you are sending and what file you are sending. कई बार वो compression ratio बहुत ज़्यादा कम भी होता है और कई बार कहीं ज़्यादा अच्छा भी आ जाता है। We are not moving further into that because that is also a huge topic to discuss, वो कभी और दिन करेंगे, लेकिन for now yes, that is archive file, and from my this terminal you will also be able to make this archive files। ठीक है, वो भी आप कर सकोगे। और सुनो, फिर मैंने यहाँ पे और क्या क्या चीज़ की है कि यस, हाँ, एक और चीज़ कि जो बेसिक सीएमडी हमारा होता है, उसमें आप जितने भी कमांड्स टाइप कर सकते हो, वो सेम कमांड्स आप मेरे वाले टर्मिनल में भी टाइप कर सकोगे। लेट्स से कि अभी किसी को सीएमडी आता है और मेरा वाला टर्मिनल वो यूज़ कर रहा है और उसको बीच में कहीं पे सीएमडी का काम पड़ गया, देन ही हैज़ गॉट many of the ways to access that system CMD also। कि आपको सिस्टम कंसोल मतलब सिस्टम सीएमडी आपको ओपन करना है, या फिर आपको सिर्फ एक उसकी कमांड टाइप करके आपको फिर से आप वापस आ जाना है, तो उसके लिए भी फीचर रखा हुआ है। आपको अगर मेरे वाले कंसोल में ही सिस्टम सीएमडी खोलना है, तो उसके लिए भी मैंने फीचर रखा हुआ है। और आपको मेरा वाला सीएमडी आई मीन मेरा वाला जो कंसोल है उसकी आपको विंडो अलग रखनी है और एक दूसरी विंडो में हमको सीएमडी खोलना है, तो उसके लिए भी मैंने वो वाला फीचर रखा हुआ है। फाइन। फिर आपको अगर पाइथन कंसोल भी खोलना है, तो वो भी आप न्यू विंडो में खोल सकते हो मेरे टर्मिनल से। और वो ये सारी चीज़ें मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई, वो आपको सबको अगर क्लोज भी करना हो, तो भी आप सिंगल में कमांड से आप उसको क्लोज कर सकते हो। यस, फ्रॉम माई कंसोल। यस, यू विल बी एबल टू डू दिस, आई विल शो यू इन अ मोमेंट। देन it can clear the console any time
फ्रॉम बाय जस्ट टाइपिंग शॉर्टकट। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बोली कि आपको अगर क्लियर करना हो तो आप CLS टाइप करते हो CMD में, लेकिन मेरे बारे में आप अगर C टाइप करोगे तो भी क्लियर हो जाएगा, अगर आप 1 टाइप करोगे तो भी क्लियर हो जाएगा, और अगर आप क्लियर टाइप करोगे देन ऑल्सो इट विल बी क्लियर। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने अभी तक आपको बोली। फाइन, अभी टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में अभी देखो, अभी तक आई हैव मेड इट टिल दिस ओनली, कि अभी तक मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ विंडोज़ के लिए, स्पेसिफिकली सिर्फ CMD के लिए ही मैंने ये चीज़ बनाई हुई है। लेकिन ये चीज़ और चीज़ के लिए भी यूज़ हो सकती है, दैट बेसिकली आई विल डिस्कस इन द लास्ट ऑफ द वीडियो। ठीक है, क्योंकि इसके काफ़ी सारे फीचर एनहेंसमेंट है और वो मैंने अपनी स्लाइड्स में भी रखे हुए हैं, सो विल डिस्कस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी रीच ओवर टाइम। और दूसरी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज़ बेसिकली GRE। देखो, आपको पूरी JDK डाउनलोड करने की ज़रूरत, ओके फाइन, अब जिसको GRE JDK नहीं पता है, इट इज़ JDK इज़ बेसिकली जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, वो चीज़ किस लिए होती है कि अगर आपने कोई आपको अगर जावा में आपको डेवलपमेंट करना हो तो उसके लिए होती है। और GRE किसके लिए होती है कि जावा, उसको बोलते हैं जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो आपने जो भी जावा का आपने कोड लिखा है और उससे आपने जावा की जो डॉट क्लास फाइल आपने जनरेट की है, वो डॉट क्लास फाइल आप अगर किसी को शेयर करोगे, देन ही विल बी एबल टू परफॉर्म दैट कोडिंग व्हाट यू हैव डन फॉर दैट सॉफ्टवेयर। मतलब उसको वो सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, तो हाँ, आप मेरे जो प्रोजेक्ट में जितने भी डॉट क्लास फाइल हो, मैंने वो जनरेट करके रखी है एक पूरे फोल्डर में। तो अगर आपको वो रन करना है देन यू विल नीड GRE फॉर द सेम, यू नीड नॉट JDK, क्योंकि आपको डेवलपमेंट नहीं करना है, डेवलपमेंट मैंने कर दिया है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, तो आपको सिर्फ GRE करना है। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ GRE डाउनलोड करना है अगर आपको रन करना है तो। फाइन, मूविंग फर्दर, now we come to my own made commands and usages for it। ठीक है, और व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि यहाँ पे देखो, ये है ना, मैंने मतलब फॉर नाउ देर आर टोटल 9 कमांड्स, और उसमें भी काफ़ी सारे सब कमांड्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ अभी, कि देखो ये ज़्यादा है ना बोरिंग अभी होता जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को कुछ भी मतलब मैं जो भी चीज़ बोल रहा हूँ लेकिन आपको पता नहीं चल रही होगी शायद से। तो मैं क्या करता हूँ कि आई विल जस्ट ओपन द थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शो यू, सी विल डू वन थिंग। मैंने मतलब काफ़ी मतलब सब चीज़ के मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स रखे हुए हैं, सारी कमांड्स के। तो हम क्या करते हैं, एक एक स्क्रीनशॉट देखेंगे और वो कमांड हम मेरे वाले सॉफ्टवेयर में देखते जाएंगे। ठीक है, सो दैट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग ऑल्सो फॉर यू। और देखो, ये सारी जो भी मैंने यहाँ पे कमांड्स रखी है और उसके यूसेजेस भी रखे हुए हैं ना, दैट ऑल थिंग इज ऑलरेडी कवर्ड इन दिस स्टफ, सो विल डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रीनशॉट थिंग नाउ। ठीक है, नाउ सी, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ द थिंग इज द वेलकम स्क्रीन। हाउ हाउ डू मतलब कैसा लग रहा है ये? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो अभी पहले हम आई मीन लेट्स स्टार्ट इट। सो आई विल फर्स्ट ओपन माई CMD, आई विल गो टू माई सेव्ड। देखो, अगर आपको करना है तो आपको भी मेरे जैसे ही करना पड़ेगा। आई विल गो टू फर्स्ट ऑफ ऑल डेस्कटॉप वेयर माई फोल्डर आई हैव सेव्ड, then I will go to my main folder which is called sysmate. Fine, and now I will execute my code. Okay, my dot class file where I have saved डॉट एस। देखो, ये इसमें कंफ्यूज मत होना, ये भी अगर अगर मेरा आपको ये मेरी वाली चीज़ अगर यूज़ करनी है तो उसके लिए भी मैं बाद में अगर वीडियो बनाता हूँ तो बना दूंगा। ठीक है, इफ़ यू वांट दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम मतलब मैं बोल देता हूँ, क्योंकि देखो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आपको ये चीज़ ट्राई करनी हो तो उसकी रिपोजिटरी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दी होगी। तो आप देख सकते हो उसमें से, और अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप जो सबसे पहले वाला फ़ोल्डर है सिसमिट का, वो आप डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको कोडिंग भी देखना है कि मैंने किस तरह से कोड किया है ये पूरा सॉफ्टवेयर, तो वो मेरे सारी की सारी जो कोडिंग की जो भी फाइल्स थी वो मैंने वहाँ पे अपलोड की हुई है। ठीक है, तो अगर आपको देखना है देन यू कैन ऑलवेज विजिट दैट। ओके, नाउ स्टार्टिंग विथ इट, फिंगर्स क्रॉस्ड, hold on, I mean tighten up your seat belts, or it is going to be quite a lot interesting.
So let's directly get started. Okay, देखो इसको बोलते हैं failure. Fine. So I'll just fix this issue and I will start again this thing. ओके गाइस, सो मतलब कोई भी इशू नहीं था। मैंने ज़्यादा एक्साइटमेंट में जब भी आ जाता हूँ तब मैं गलती कर देता हूँ, और ऐसे भी मतलब बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, सो दैट्स फाइन। सो मैंने यहाँ पे एस वाई एस की जगह पे एस वाई ए लिख दिया था, तो फिर वही दिक्कत हो गई थी। लेकिन फॉर नाउ वील जस्ट स्टार्ट। फाइन, यहाँ पे ए का हम एस कर देते हैं एंड यस वी हैव स्टार्टेड। Mm, yes, just a second. I will just close this again and I will restart it. Okay, we have closed it. और देखो ये वाला मेरा यहाँ पर फोल्डर था असेसमेंट का, और मैं यहाँ से डायरेक्टली सी एम डी अभी रन कर देता हूँ। जावा sysmate डॉट अगेन आई एम यस। देखो अभी भी मैंने फिर से वही एरर की, तो हो जाता है, इंसान है हम लोग भी। हाँ, सो यस नाउ इट इज स्टार्टेड सक्सेसफुल। ओके, सो कैसा लग रहा है ये पूरा, ये कूल स्टफ, ये आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी आपको और अच्छा लगेगा, क्योंकि देखो मैं फिर से इसको रीस्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ओके, वेट अ सेकेंड। सी क्लोज एंड वी हैव एग्जिटेड द प्रोग्राम सक्सेसफुली। फिर से हम यहाँ पे सी एम डी लिखते हैं और वही वाली हमारी फिर से कमांड लिखते हैं, जावा सिस में ई डॉट सिस एम ए टी ई। ठीक है, देखो ये मैं थोड़ा ओपन कर देता हूँ तो देख सकते हैं। देखो कैसा लगता है? अच्छा, ये तो मतलब थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, थोड़ा अच्छे से फॉर्मेटेड नहीं है, लेकिन फिर से हम एक बार क्लोज करते हैं और फिर से शुरू करते हैं इसको। मैं ये क्या कर रहा हूँ, आई विल एक्सप्लेन यू दिस इन ए मोमेंट। जावा सिस्मेट डॉट देखो हर बार इसका फॉन्ट मैंने अलग अलग रखा है। देखो इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको आस्की कोड बोलते हैं। कि इसको आस्की डिज़ाइन में मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। और अगर आपको वो भी देखनी, मतलब वो आपको अगर ऐसी डिज़ाइंस अलग अलग जनरेट करनी हो, तो उसके लिए भी जो भी लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, आप इसे जनरेट कर सकते हो। ये मतलब ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग है अगर आपको सीखना है तो। और देखो, this is our welcome screen, you can say this is our welcome console, you can say whatever you want, fine. So what it says that welcome to LazyBist, and a platform for lazy users like me. And this is self promotion, it is developed by one and only, ठीक है। और and it says that type H for help, fine. So let us directly type H and let's press enter. So you can see, how do you think it is? कैसा लग रहा है अभी आपको? अच्छा लग रहा होगा, that is what I am hoping, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत की है भाई। बुरा मत लगाना, क्योंकि दिल से बुरा लगता है। फाइन, चलो, आई एम वेरी बैड एट जोक्स, आई नो दैट, बट एनीवेज बेयर विथ मी। ठीक है, okay. Now, see, I would recommend you that you always use if ever you use this, that then you just use it in the full screen, because I have kept this all this sort of designs in such a such keeping in mind that you will use it in a full screen mode. Fine. For now, just to explain you, I am just keeping it in a half thing, this half screen. But whenever you use it, make sure that you use it in the full screen mode. Fine, fine. So here, by typing the help command, as I said you, that see, in total I have kept 10 commands of mine. Initially, I said that I kept 9 commands, but we are programmers, guys, so we know that index starts from 0. जो भी प्रोग्रामर्स नहीं है उनके लिए ठीक है, बाकी जो भी प्रोग्रामर्स है
उसके लिए उनको पता होगा कि many of the languages index number always starts from 0. So yes, our program numberings also will be starting from 0. Okay, moving further. So first command is back command. See, in this console, in this my software, there are multiple sub consoles in it. Fine. So ये मेरा मेन कंसोल है, उसके बाद भी इसके अंदर भी काफ़ी सारे और कंसोल्स हम जनरेट कर सकते हैं. तो क्या होता है कि एक बार आप इस कंसोल को छोड़ के उस कंसोल में चले गए, देन ऑल दैट दिस एक पावर ट्रांसफ़र होती है ना. जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर आज अगर राजा बैठा है, ठीक है, तो कल तो राजा का बेटा उसकी गद्दी पे बैठेगा ना. अभी वो सारी वो फिल्मी चीज़ें इसमें रिलेट मत कर देना, लेकिन इन जनरल मैं आपको मतलब थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजा जो अभी रूल कर रहा है, हम अगर अभी पुराने ज़माने में चले जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो वो सारी चीज़ें अभी दिमाग में से निकाल देना कि राजा का बेटा राजा नहीं रहेगा सब. अभी राजा का बेटा ही सिर्फ राजा बनेगा, ऐसा आप समझ लो अभी के लिए, ठीक है. तो अभी अगर राजा राज कर रहा है, ठीक है, तो जब भी राजा बाहर जाएगा उसके कैसल में से, तो क्या हो गया कि उसका बेटा जो होगा वही राज करेगा, ऐसा वहाँ का नियम है, ठीक है. ऐसा ऐसा सेम नियम यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि अगर आप एक कंसोल से दूसरे कंसोल में जाते हो, तो दूसरा जो भी आप कंसोल बन जाता है आपके सामने, पूरे के पूरे जो पावर्स कंट्रोल्स जो है ना, वो उस कंसोल के पास चले जाते हैं मेन कंसोल को छोड़ के, ठीक है. फिर आप जैसे ही वो मेन कंसोल को छोड़ देते हो, फिर वापस से वो अपने पापा के पास चला जाता है, फिर से वो राजा का पावर राजा को मिल जाता है, और राजा का बेटा ऐसे ही चले जाता है कि चलो भाई मेरा काम हो गया, पापा वापिस संभाल. ठीक है, फाइन. ओके. सो मूविंग फर्दर. हाँ, तो मैंने बैक कमांड अब किसके लिए यूज़ की थी वो आपको बताता हूँ, कि जो मैंने अभी कथा की आपके सामने, इसीलिए की कि अगर आप एक कंसोल से दूसरे कंसोल में जाते हो, और अगर आपको वापस से मेन कंसोल में रिटर्न करना हो, देन यू विल यूज़ आइदर ज़ीरो, और आइदर यू विल टाइप बैक एंड प्रेस एंटर. ठीक है. कि अगर आप कोई भी कंसोल में चले गए, अभी आप देखोगे अभी आगे जब भी आएगा कि कंसोल कैसे, मैं आपको क्या कंसोल मतलब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यू विल गेट टू नो इन अ मोमेंट, ठीक है. लेकिन फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दैट व्हेन यू आर इन सब कंसोल, टू गेट बैक टू मेन कंसोल यू हैव टू टाइप ज़ीरो, और यू हैव टू टाइप BACK बैक कमांड, ठीक है. ओके. मूविंग फर्दर, second of my command is, and it is numbered as 1, it is called clear command. And as I said you that you can use this command just by typing 1, or you can also type only C letter and then press enter, or you can just write this whole word clear and then press enter. All these three things will work. And if you notice this, then by every command I have just written its usage, and after that usage I have kept an example, I have kept its use case कि इम्प्लीमेंटेशन उसका कैसा होगा. तो बैक के लिए देखो, आप अगर बैक टाइप करोगे देन सो इट विल वर्क, और यू टाइप ज़ीरो. वैसे ही क्लियर के लिए आप अगर सी टाइप करो तो भी चलेगा, वन टाइप करो तो भी चलेगा, और अगर आप क्लियर लिखते हो तो भी चलेगा, और देन प्रेस एंटर फॉर द. ठीक है. फिर दूसरी कमांड जो हमारी आती है सेकंड नंबर पे, वो तीसरी कमांड है, लेकिन हम नंबरिंग के वाइज ही जाते हैं. Second one, with the command which is on the second number, it is called open command. Now what this open command does is it can open any of the program in your system. You name the program and I will open it for you. हाँ, इसमें अभी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है किस चीज़ में, तो कि जो भी प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस हमारे पास से मांगते हैं, वो प्रोग्राम अभी इसमें ओपन नहीं हो रहे. तो जिनको मतलब जो मेरे से ज़्यादा जानते हैं, वो प्लीज़ आप अगर इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, और इफ़ यू वांट टू हेल्प मी, देन प्लीज़ 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 डू विज़िट माय कोड एंड फाइंड द नेसेसरी सॉल्यूशन फॉर द सेम, क्योंकि मैंने भी काफ़ी देखा, मुझे नहीं मिला, इसलिए आई जस्ट लेफ्ट इट फॉर नाउ. मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के बिना आप जो भी प्रोग्राम ओपन करवाना चाहते हो, वो आप प्रोग्राम इससे ओपन करवा सकते हो. ठीक है, ये चीज़. अभी हाँ, यहाँ पे आप देखो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि दिस कमांड इज़ यूज्ड टू ओपन any of the program. ठीक है, and I have kept a note over here. Now what is this note is quite interesting. Program will open in new window
ठीक है। डेफिनेट है कि आप कोई भी जो भी अभी अगर नॉन सी एल आई प्रोग्राम आप अगर ओपन करते हो तो फिर ऑफ कोर्स वो सी एल आई में तो ओपन नहीं होगा, वो एक अलग विंडो में ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अगर आप ओपन के बाद -m लिखते हो और देन यू प्रेस द एंटर, देन फुल डिस्प्ले मेनू विल ओपन विच इज़ कॉल्ड ओपन मेनू। मतलब जैसे हमारा स्टार्ट मेनू यहाँ पे होता है ना, मैंने वैसे ही यहाँ पे सी एल आई के लिए ओपन मेनू रखा है कि जैसे हम यहाँ से क्लिक करके जो भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर सकते हैं, उसी तरह से हम सी एल आई में से भी मेनू के नंबरिंग्स के ऊपर से हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम कैसे अगर इसका यहाँ पे हम कोई भी अगर नाम टाइप करते हैं तो वो हमारे सामने आ जाता है एंड वी हैव टू क्लिक इट देन द प्रोग्राम स्टार्ट। ऐसी चीज़ यहाँ पे भी है कि यहाँ पे मेनू भी आपके सामने आ जाएगा एंड यू जस्ट हैव टू press those of the numberings and that program will start automatically. Or else if you know the name of the program, you can start the program just by typing open or to and then the name of the program, so it will be open. अभी देखो मैंने यहाँ पे यूज़ केसेस इसके रखे हुए हैं कि लेट्स से यू वांट टू ओपन ओनली नोटपैड, अनटाइटल्ड नोटपैड, न्यू नोटपैड फाइल, न्यू टेक्स्ट फाइल इफ यू वांट टू ओपन, ठीक है। then you either type to then space then notepad.exe, or if you want to open some saved text file, then you can open it this way, like open notepad xyz.txt, so that file will be open for you. Fine. Okay, now moving further. So what I was expecting was like I was just expecting to see all this help command, क्योंकि वही चीज़ मैंने अपनी पीपीटी में भी डिस्कस की हुई है पहले। हम मतलब क्या करते हैं कि पहले ना इसको अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये हर एक कमांड्स ट्राई करेंगे एंड दैट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर यू। तो मतलब जिसको भी ये सारी चीज़ें अभी नहीं समझनी है, दे कैन skip the video if they want, but I would recommend you that you see it so you can understand each and every use cases of it, और कैसे ये चीज़ काम करती है, ठीक है। ओके फाइन। then third numbered command is close command. Now this command is very 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 good. Why I am saying it is very 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 good? Now let's say you have opened 5 of the text files and you want to close those files. अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप जनरली यहाँ पे ऐसे वो क्लोज बटन कर करके आप बंद करो, ठीक है। अभी मान लो ये तो मैंने आपको 5 फाइल बोली, अगर ऐसी 100 फाइल होती तो आप क्या करते हैं? हर एक को आपको ऐसे ऐसे क्रॉस 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 करना पड़ता और उसमें आपको इतना टाइम जाता, ठीक है। तो ये चीज़ है। एक तो ये चीज़ होगी, फिर जिसको मतलब थोड़ा बहुत भी आता है वो अल्टर प्लस F4 दबा देगा, तो उससे एक एक फाइल फटाफट क्लोज हो जाएगी। ये उसका शॉर्टकट है फाइल क्लोज करने के लिए, ठीक है। तो आधे लोग वो ट्राई करेंगे। अब मैंने आपको वही उनको भी बोलता हूँ कि अगर 100 फाइलें तो आप 100 बार अल्टर प्लस F4 अल्टर F4 अल्टर F4 ऐसे दबाते ही रहोगे, ठीक है। तो मतलब उसमें भी आपका काफ़ी टाइम, या फिर दबाए रखोगे तो भी कुछ ना कुछ तो सेकंड्स तो आपकी जाएगी। तो उससे अच्छा कि आप क्लोज कमांड का यूज़ कर दो, और जस्ट बाय टाइपिंग क्लोज स्लैश ऑल, और फिर आपको जो भी प्रोग्राम बंद करना है वो, मैंने आपको जैसा अभी बोला कि आपकी अगर 100 नोटपैड फाइल्स आपकी ओपन हैं तो आप क्लोज बाद में ऐसे छोटा सा माइनस का साइन करके फिर आप ऑल लिखोगे और उसके बाद आप प्रोग्राम का नाम लिख दोगे विच इज़ इन आर केस नोटपैड। आप अगर उतना लिखोगे और एंटर प्रेस कर दोगे, देन नॉट it does not even takes a second to close all that 100 of files, and yes, I have personally tried it and then I am saying it. Fine. Okay, now um, now this is हेल्प कमांड, दिस इज़ ऑन नंबर 4। एंड देखो मैंने आपको थोड़ा ना अभी हर बार मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप देख सकते हो हर एक चीज़ में कि यहाँ पे मैंने उसका एग्जांपल लिखा हुआ है कि हाउ यू कैन यूज़ दिस कमांड, ठीक है। So, yes. ओके ठीक है। देखो अभी हेल्प, ठीक है। तो हेल्प के लिए आपको, आप अगर एच टाइप करोगे तो भी चलेगा, हेल्प टाइप करोगे तो भी चलेगा, और अगर आप फुल टाइप करते हो देन ऑल्सो इट विल वर्क फाइन। ये हेल्प बेसिकली यही आपको यही हेल्प दिखा देगा। ये मेरी मेन कंसोल के लिए हेल्प है। अभी आप जो भी कंसोल में अलग अलग जाते हो उसके लिए अलग अलग हेल्प होगी, ठीक है। फाइन। Now moving on to this fifth number of command which is called modify command.
अभी yes, here the things gets interesting when you dive deep into it. क्योंकि क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आधे लोगों को शायद से पता होगी, और जिनको पता है उन उस उससे कहीं ज़्यादा चीज़ मैंने यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। तो काइंडली डोंट मिस दिस, बिकॉज दिस इज द थिंग वेयर द थिंग्स गेट रियली ज्यूसी, ठीक है। फाइन। सो यस, दिस कमांड मैंने आपको बोला कि वो कलर टाइटल प्रॉम्प्ट कर सकता है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत, ये खास करके टाइटल और प्रॉम्प्ट में तो ठीक है, आपको जो भी करना है वो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, मतलब मैन्युअली मतलब वही शॉर्टकट्स लगा के आपको आपको मन चाही चीज़ आप जो भी करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। लेकिन द थिंग्स विद दिस कलर कमांड इज़ रियली रियली वेरी कलरफुल बिकॉज यहाँ पे मैंने बहुत सारे फंक्शंस अपने आप से बना के सोच समझ के किए हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा जब भी हम करेंगे। और यहाँ पे मैंने एक ये नोट लिखी हुई है कि लेट्स से कि आप अपने सिस्टम में बैठे हो और आप ये पहली बार ये चीज़ ट्राई कर रहे हो, तो अगर जिसको ख़राब करना हो ना, मतलब वही हम पहले वाली चीज़ थोड़ी बहुत रिकॉल करते हैं कि अगर आपका दोस्त बहुत ज़्यादा हरामी हो तो वो कुछ भी कर सकता है इसमें, आपका टाइटल पूरा बदला सकता है, आपका प्रॉम्प्ट पूरा बदला सकता है, और आप जब वापस आओगे कुछ काम से, अगर आप बाहर गए थे तब उसके दौरान उसने ये सारी चीज़ें कर दी हो, और अगर आप वापस आओगे और देखोगे तो आपको मतलब कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ऐसा ऐसा भी आप कर सकते हो कि मतलब ऐसी भी कंडीशन एराइज हो सकती है कि आपको ऐसा लगे कि आपका सिस्टम चला गया, इट मीन्स यू हैव टू जस्ट टर्न इट ऑफ, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। और आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स इसमें चल रहे हो तो मतलब आपको सब कुछ बंद करके आप चालू कर दो। मतलब ऐसी चीज़ें अगर होती है तो आपको क्या करना है कि आपको मॉडिफाई ऑफ कमांड टाइप कर देना है, जिससे जो भी उस बंदे ने मॉडिफिकेशंस किए होंगे वो सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे, और जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं वो सारी आ जाएगी, जैसे कि हमारा डिफ़ॉल्ट टाइटल है वो वापस आ जाएगा, फिर हमारा जो डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट होगा वो वापस आ जाएगा, और जो हमारा डिफ़ॉल्ट कलर, हाँ यहाँ पे ये मेरे कमांड प्रॉम्प्ट के लिए डिफ़ॉल्ट कलर ये मैंने सेट किया हुआ है, लेकिन डिफ़ॉल्ट कलर मैंने आपको, आई एम सॉरी, मैंने आपको जो दिखाया ब्लैक एंड वाइट होता है, ठीक है, तो वो ब्लैक एंड वाइट आ जाएगा। सॉरी फॉर दिस, यस, दिस वॉज इट, फाइन। और हाँ, मैं जो अभी आपको कंसोल कंसोल के बारे में जो मैं अभी आपको अभी जो बातें बता रहा हूँ ना, आप यहाँ से वो कंसोल की स्टोरी शुरू होती है कि अगर आपको कलर मॉडिफाई करना है तो आपको लिखना है मॉडिफाई, उसके बाद कलर, तो आप कलर कंसोल में चले जाओगे। अगर आपको मॉडिफाई करना है टाइटल, तो आप या तो मॉडिफाई लिखो या फिर फाइल लिखो, उसके बाद आप टाइटल लिखो, तो आप टाइटल मॉडिफिकेशन कंसोल में आप चले जाओगे, ऐसे ही प्रॉम्प्ट मॉडिफिकेशन कंसोल की, ठीक है, तो आप उस तरीके से उसमें भी जा सकते हो। फिर हाँ, ये छठा नंबर की चीज़ है sys cmd। नाउ दिस sys cmd इज़ एक्चुअली आवर cmd, आवर कमांड प्रॉम्प्ट, कि आपको जो भी कमांड्स टाइप करनी हो इसमें, आपको सारी की सारी जो भी कमांड्स आप cmd में टाइप करते थे वो सेम कमांड्स आप इससे टाइप कर सकते हो। लेकिन मैंने जो आपको पहले भी जो फीचर्स 3 बताए थे, कि पहली चीज़ तो वो हो गई कि आपको सिर्फ इसके दौरान आपको एक कमांड टाइप करके फिर वापस आपको अपने कंसोल पे आ जाना है, तो आप वो कर सकते हो। फिर दूसरी चीज़ कि आपको इसी में सिर्फ सी एम डी ओपन करना है, मतलब कि जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो आपको ओपन करना है, तो वो भी हो सकता है। और अगर आपको न्यू विंडो में ओपन करना है तो वो भी हो सकता है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देन वी हैव पाई सी एम डी। तो पाई सी एम डी क्या है? पाइथन कंसोल है भाई, कि अपना पाइथन कंसोल हम खोलते हैं तो जैसे हम पाइथन के जो भी फंक्शंस लिखते हैं वो, मतलब पाइथन कंसोल जिसको भी पता है वो समझ सकता है कि वो देख विल ओपन पाइथन कंसोल इन द नेक्स्ट विंडो, ठीक है। और आपको जो भी करना है उसमें कर सकते हो, ठीक है। देन वी हैव गॉट दिस आर्काइव और आर्च, ठीक है। अभी ये क्या है, ये आर्काइव फाइल हमारी बनाने का, जो भी फाइल फोल्डर्स होगी, और यहाँ पे मैंने ये सारे के सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए आई हैव यूज्ड दिस सॉफ्टवेयर, कि इसके अंदर भी मैंने सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है विच इज़ कॉल्ड 7zip, ठीक है। 7zip ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और इट बेसिकली मेक्स रियली गुड कंप्रेशन, it keeps very good compression ratio, and provides you much more compression than the usual zip compressing, okay. So yes, it is a really good tool, so I used it.
एंड इट इज़ रियली क्वाइट पावरफुल, और वो काफ़ी सारे डिफरेंट फॉर्मेट सपोर्ट करता है। जैसे 7G हो गया, 7G तो उसका डिफ़ॉल्ट वही है। उसके बाद सिप फॉर्मेट भी सपोर्ट करता है, रार फॉर्मेट भी सपोर्ट करता है, टार TAR टार फॉर्मेट भी सपोर्ट करता है। जिसको भी पता है उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सो विच इज़ अ गुड थिंग। और वही यहाँ पे भी दो फीचर है कि आपको अगर कमांड लाइन से ही वो सारी चीज़ें ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। और अगर आपको मान लो किसी ये चीज़ कैसी है, थोड़ी बहुत आपको फॉर्मेटिंग इसमें देखना पड़ेगा कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले आपको ARCH लिखो या फिर आर्काइव लिखो या फिर AT लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जो भी यहाँ पे लिखो, ठीक है, तीनों में से। फिर आपको उसका एक्सटेंशन देना है कि कौन सा आपको एक्सटेंशन चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि 7G चाहिए तो 7G लिखो, ज़िप चाहिए तो ज़िप लिखो, रार वैसे, समझ गए। फिर उसके बाद हमें आउटपुट लोकेशन उसका देना है कि आप अपनी फ़ाइल, ये जो ज़िप फ़ाइल जो भी है, कंप्रेस्ड आर्काइव फ़ाइल जो भी आपकी बनेगी, वो आपको कहाँ पे स्टोर करवानी है, तो आपको उसका वहाँ पे लोकेशन देना पड़ेगा। और आपको उसके बाद उसका इनपुट लोकेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये ना थोड़ा कमांड जैसा ही हो गया है, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा कि ये कमांड आधे लोग नहीं याद रख पाते हैं या फिर उसको बार बार ऐसे हेल्प टाइप करके देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या रखा है कि उसमें थोड़ा बहुत GUI का सपोर्ट दे दिया है कि अगर आप एक टाइप करोगे तो एक पूरा फाइल मैनेजर टाइप की विंडो खुल जाएगी, और उससे आप डायरेक्टली सिलेक्ट करके आप जो भी आपको ऑपरेशन करना है वो आप करवा सकते हो, ठीक है। आपको जो भी आर्काइव फाइल बनानी है आप बना सकते हो। ओके, now moving on, this is also quite juicy thing for the system administrators or who are into the networking side or who want to learn networking। मतलब learn तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन जिसको नेटवर्किंग की कमांड्स थोड़ी इजीली फटाफट टाइप करनी हो, वो ये चीज़ यूज़ कर सकता है कि this is called sysnet, and you can use this command by simply writing netnet or sysnet or 9, ठीक है। And as I said, you can execute the networking commands from this. And yes, here is also a note which is saying you if you type sysnet उसके बाद स्पेस उसके बाद -m, then a net menu will be open, networking tools menu will be open, ठीक है। तो उसमें मैंने जितनी भी कमांड्स रखी है उसकी इंडेक्स वाइज उसके नंबरिंग्स मैंने दी हुए है। तो उस तरह से आप डायरेक्टली नंबर्स के ऊपर से आप डायरेक्टली कमांड्स रन करवा सकते हो, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतनी चीज़ है वो हमने कवर अप की, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एक बार हमारी जो ये PPT यहाँ पे ओपन थी, शायद से पता नहीं बंद हो गई है, तो उसको ओपन कर लेते हैं हम एक बार। यस, दिस इज बेस्ट, राइट। हाँ देखो, अब यहाँ से हमारी चीज़ होती है कि हमने क्या क्या यहाँ पे डिस्कस किया। अभी हम क्या करेंगे कि स्क्रीनशॉट्स के जैसे जैसे देखते जाएंगे और वैसी वैसी चीज़ें हम करते जाएंगे, ठीक है, फाइन। तो हमने देखा कि हमारी वेलकम स्क्रीन कैसे दिखती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कूल दिखती है। और मैंने आपको बोला कि हर बार ये जो चीज़ है वो बदलती रहेगी, आप जितनी भी बार चालू करोगे इट विल बी डिफरेंट ऑल द टाइम, ठीक है। तो वो मैंने अपने आप से थोड़ा बहुत सोच के किया हुआ है। हाँ, उसके बाद ये है हेल्प कमांड जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। और जैसे फाइन, चलो कोई बात नहीं, मेरा मुँह अपन देखो अभी थोड़ी देर चलेगा। उसके बाद व्हाट विल बी दिस दैट, हाँ अभी यहाँ पे ओपन मेनू से हम चालू करते हैं। कैसा दिख रहा है, मस्त दिख रहा है ना एकदम। आप अगर ध्यान से यहाँ पे देखोगे ना तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 2 स्पेस -m, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे टाइप करके देखते हैं एक बार। हाँ, उसके पहले एक और चीज़, ये शायद से मैं यहाँ पे लिखना भूल, नहीं मैंने ये भी इंक्लूड किया, लेकिन अभी आपको दिखा देता हूँ कि मैंने आपको क्या बोला, क्लियर करने के लिए you just have to use one or two, one or C or clear, right? So for now I am just typing C and just I'm pressing this enter, and have a look to this. All this above stuff is clear, console is clear, fine. Now if you want to see the help command, what I did say, you just have to type H से हेल्प होता है तो H टाइप करो, और H के बाद आपको पूरी की पूरी जो भी हेल्प कमांड थी वो दिख जाएगी।
अब आप देख सकते हो जिन्होंने भी कमांड इंटरफेस थोड़ा बहुत भी यूज़ किया है कि यहाँ पे देखो कमांड ऊपर जो भी अपने एंटर किए वो रहती है, उसके बाद उसका जो भी ऑपरेशन का रिजल्ट आता है वो नीचे आ जाता है उसके नीचे, ठीक है। और वंस दैट ऑपरेशन इज परफॉर्म, उसके बाद यू गेट अगेन बैक टू योर मेन कंसोल, और ऐसा आपको पॉइंटर यहाँ पे ब्लिंकिंग मिल जाता है, ठीक है, आपका कर्सर जो भी होता है। फाइन, अभी हमने क्या कवर अप किया कि हमने क्लियर कवर अप किया, ठीक है, क्लियर कमांड हमने अभी कवर अप किया। अभी जिनको भी डाउट है कि अभी तूने तो सिर्फ सी लिखा, क्लियर से क्या होता है, तो चलो आप क्लियर भी दिखा देता हूँ। इफ़ आई एम टाइपिंग CLEAR क्लियर, ठीक है, और क्लियर किया तो हो गई। फाइन, अगेन आई एम टाइपिंग H एंड इफ आई एम प्रेसिंग 1 then it should also clear, and yes it is clear successfully, ठीक है। So it is working fine with all of the three combination which I said. Now I am again typing H just for our reference, sake of reference। और हमने यहाँ पे PPT में क्या देखा था, ओपन मेनू देखा था, ठीक है। सो फॉर ओपन मेनू आई सेड यू दैट you to type open and then space and then -m और 2 space -m, ठीक है। देखो 2 क्यों, क्योंकि इसका इंडेक्स नंबर 2 है। फाइन, तो देखो हमने वहाँ पे स्क्रीनशॉट में देखा कि हमने 2 स्पेस -m किया था तो ओपन हो गया था, ठीक है। तो वो तो बट ऑब्वियस है, तभी स्क्रीनशॉट पड़ा होगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको ओपन से दिखा देता हूँ। वेट अ सेकेंड। हाँ ये फाइन, ओपन स्पेस -m, ठीक है, उसके बाद एंटर। तो देखो ओपन शुरू हो गया। अब ये देखो यहाँ पे आपको थोड़े बहुत यहाँ पे एरर्स देखने को मिल रहे होंगे कि एक्सेप्शन डिटेल्स जो भी है वगैरह, तो ये ना अभी थोड़ी बहुत है। दिस आई हैव ऑल्सो ट्राई टू रिजॉल्व, बट अभी थोड़ा और देखना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन फॉर नाउ यू कैन जस्ट इग्नोर इट बिकॉज वी आर गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट व्हाट वी वांट। एंड मैंने जानबूझ के यहाँ पे ये सारे बहुत एरर्स जो भी मुझे मिल रहे वो रखे हैं, क्योंकि अगर मैं चाहता तो इसको मैं बाईपास भी करवा सकता था, लेकिन जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन सेक कि हमें पता चले कि क्या असल में हो रहा है और कहाँ पे एरर आ रही है, टू अंडरस्टैंड दैट आई हैव केप्ट दिस, ठीक है। ओके, नाउ अगेन बैक टू दिस ओपन मेनू कि व्हाट इज दिस ओपन मेनू, और मैं आपको दिखाऊंगा कि असल में आप क्या क्या चीज़ें इससे कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे मैंने नंबरिंग्स दिए हैं, 1 to 4 नंबरिंग्स दिए हैं। और देखो मैंने प्रोग्राम्स के यहाँ पे नाम लिखे हैं। फर्स्ट इज नोटपैड, सेकंड इज पेंट, थर्ड इज क्रोम एंड फोर्थ इज कैलकुलेटर, राइट। तो ये चारों के चारों प्रोग्राम आप ओपन कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है अभी तक, इसके ये प्रोजेक्ट के लिए मैंने अभी ये सिर्फ यहाँ पे 4 प्रोग्राम रखे हैं। आप जितने भी चाहो उतने यहाँ पे प्रोग्राम रख सकते हो, जो भी ऑफ कोर्स विंडो में जो भी सपोर्ट कर रहे हैं वो, उसके बाहर के लिखोगे तो ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। हाँ, तो देखो मैंने उसके नीचे यहाँ पे उसका यूसेज भी लिखा हुआ है कि आप किसको कैसे यूज़ कर सकते हो। तो देखो फर्स्ट वे इस तो वही सिंपल पुराना वे है कि आप ओपन लिखो, उसके बाद यहाँ पे आप नोटपैड लिखो तो वो नोटपैड ओपन करके दे देगा आपको। और सेकंड वे मैंने यहाँ पे क्या दिखाया आपको कि आप नोट यहाँ पे ओपन लिखो या फिर टू लिखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, और आप उसका नंबरिंग लिखो। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करके देखते हैं कि अगर लेट्स होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स आर क्रॉस्ड एंड लेट्स ट्राई, ठीक है। So we are saying 2 and space we are giving, 2 and space we are giving, and then we are typing 4. I will press enter and see this calculator is opened for us. Okay, now let's say कि हमें facebook.com खोलना है, थोड़ा एडवांस हो जाता है हम, ठीक है। तो 2 लिखते हैं, फिर देखो क्रोम में पूरा लिखूँ उससे अच्छा है मैं उसका नंबरिंग दे दूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा, और फिर मैंने लिखा facebook.com। अब देखो मैंने यहाँ पे www डॉट नहीं लिखा है, ये क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि अभी के जो रूल्स है वेबसाइट्स के लिए, और www डॉट भी आप अगर ना लिखो देन सो इट वर्क्स फाइन, ठीक है। फाइन, सो फॉर दैट आई हैव नोटेड इट एंड नाउ आई एम प्रेसिंग एंटर। Okay, so now there is some exception cost, but it works totally fine। एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे facebook.com खुल गया है हमारे सिर्फ एक एंटर से। तो आप देख सकते हो कि कितना पावरफुल इट कैन बी एट टाइम्स, कि लेट्स से आपको मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे ओपन करनी हो। तो ये मैंने अभी पर्सनली ट्राई नहीं किया, लेकिन देखो चलो करते हैं ये भी कि लेट्स से एक टैब में हमने यहाँ पे facebook.com रखा और एक में हमने लेट्स से रख दिया google.com। ट्राई करते हैं, आई एम नॉट श्योर दैट इट विल वर्क ओनली, बट येस इट हैज़ वर्कड फाइन। देखो आपने 2 टैब्स यहाँ पे ओपन कर दिए हैं, आप देख सकते हो कि हाउ यूज़फुल इट कैन बी एट टाइम्स, ठीक है।
कि आपको लेट्स से कि आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपको ओपन करनी है तो आप इससे कर सकते हो और ईजिली मैंने आपको दिखाया कि हमने सिर्फ दो चीज़ें यहाँ पे लिखी और आपको जितने भी टैब्स यहाँ पे ओपन करने हो आप कर सकते हो। यू कैन ओपन मल्टी टैब एट ए सिंगल टाइम। आप जब शुरू करो तभी आप इसको ओपन कर सकते हो। लेट्स से अगर आपको कॉलेज की मीटिंग शुरू करनी है एक टैब में और एक टैब में आपको कुछ रिसर्च वगैरह का पार्ट करना है तो आप एक टैब में meet.com लिख दो। मीट गूगल मीट की जो भी यूआरएल होती है वो आप लिख दो और एक टैब में आपका जो भी रिसर्च वर्क है आप वो लिख दो। तो इट वर्क्स प्रीटी वेल विद दैट। ठीक है। अरे मैंने ऐसे ही इसको बंद कर दिया, कोई बात नहीं, चलो उसके क्लोज कमांड के बारे में आपको आगे दिखा दूंगा, कोई बात नहीं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, वी आर टाइपिंग टू, वापस आ जाते हैं, हाँ, टू एंड वी आर प्रेसिंग वन सो इट विल ओपन अनटाइटल्ड नोटपैड फॉर। ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे नोटपैड ओपन हो चुका है। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि हम ये मेरे वाले प्रॉम्प्ट से ही हम इसको ये कोई भी प्रोग्राम्स को हम क्लोज कर सकते हैं, ये मैंने आपको बोला था ऐसा। तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखोगे तो देखो इसका नाम क्या है, अनटाइटल्ड। ठीक है, अनटाइटल्ड इसका नाम। तो अभी के लिए लेट्स गिव इट अ ट्राई। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्लोज कमांड के लिए क्या यूज़ करना है, या तो थ्री या तो क्लोज। ठीक है। सो वी आर जस्ट प्रेसिंग फॉर नाउ, अभी इसीलिए हमने नहीं लिखा क्योंकि हमें पूरी कमांड्स टाइप ना करनी पड़े और वही हमारा आई एम सॉरी एम है इस प्रोजेक्ट का। ठीक है। सो हम यहाँ पे टाइप करते हैं थ्री, उसके बाद इसका नाम लिख देते हैं, जो नाम है इसका अनटाइटल्ड। ठीक है। सो UNTITLED एंड विल जस्ट प्रेस एंटर एंड आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो यहाँ से चला गया है। सो इट मीन्स दैट इट इज़ क्लोज्ड। ऐसे आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे क्लोज करनी हो यू कैन डू दैट थिंग। वो जो भी चीज़ यहाँ से क्लोज करनी हो आप वो कर सकते हो। इनफैक्ट हाँ, वो तो मतलब आगे आएगी, लेकिन आपको यहाँ से अगर पीछे भी शट डाउन करना हो जो आप CMD से कर सकते थे वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। मतलब वही चीज़ होगी कि आप जो भी CMD से कर सकते थे यू कैन डू एवरीथिंग, और आप CMD से प्रीटी मच 99.99 थिंग आप CMD से कर सकते थे। ठीक है। तो आप इससे भी ये चीज़ कर सकते हो, दैट इज़ फॉर्च्यून। हाँ, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है वो छोड़कर, क्योंकि उसके लिए मुझे भी अभी थोड़ा बहुत रिसर्च और करनी पड़ेगी और वो मैं करूँगा उसके बाद। फाइन। नाउ वी आर जस्ट मूविंग बैक टू PPT और थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि जो भी हमने चीज़ की वो हमने कवर अप यहाँ पे की हुई है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे मैंने अपना नोटपैड ओपन किया था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैं टू और वन टाइप किया था और नोटपैड ओपन किया था। फिर हमने क्या किया कि नोटपैड को क्लोज़ किया। हमने कैसे किया, तो थ्री और अनटाइटल्ड लिखा। अब यहाँ पे थ्री की जगह पे अगर हमने यहाँ पे क्लोज लिखा होता और उसके बाद अनटाइटल्ड लिखा होगा देन ऑल्सो इट वुड हैव वर्कड प्रीटी मच द सेम वे। फाइन। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द जूसी थिंग, जिसको बोलते हैं अभी मॉडिफाइंग कलर्स कंसोल के अंदर हम जाते हैं, जो मैं आपको कब का ही चीज़ के बारे में भूलता जा रहा हूँ। ठीक है। तो चलो डायरेक्ट चले जाते हैं इसमें, इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं और यहाँ पे देखते हैं। अभी देखो अभी मेरे बुक का कुछ भी काम नहीं है। सबसे पहले हम क्या टाइप करते हैं, वन टाइप करते हैं, या फिर हाँ एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये भी अभी देखो यहाँ पे मेरा जो पूरा कंसोल है भरा हुआ है। ठीक है, हेल्प कमांड से भरा हुआ है। अभी मॉडिफाई कलर्स में मॉडिफिकेशन कलर्स कंसोल में जाने के लिए क्या करना है हमें कि यहाँ पे मॉडिफाई लिखना है और कलर लिखना है, या फिर मॉडिफाई लिख मतलब फाइल लिख के कलर लिखना है, देन वी विल गो टू मॉडिफिकेशन और कलर कंसोल। तो देखो हमने अपने PPT में भी यही चीज़ दिखाई है। हाँ, कैसे जाना वो शायद से मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि व्हेन यू विल प्रेस फाइल एंड यू विल से कलर, देन ऑल्सो यू विल लैंड ऑन टू कलर मॉडिफिकेशन। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि पहला का पुराना जो भी चीज़ था वो पूरी की पूरी वाइप्ड हो गई। कलर मतलब जो भी चीज़ हमने पहले लिखी हुई थी, जो भी हमारे पहले के आउटपुट्स थे वो काफ़ी सारे के सारे क्लियर हो गए और उसके बाद एक नया कंसोल आ गया। तो मैंने आपको नहीं बोला था कि जब पुराना जाता है तब पूरा का पूरा कंट्रोल नए के पास आ जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे हुई है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि वेलकम टू द कलर मॉडिफिकेशन कंसोल, वही, और modify the colors from for of the text and the background of the console as you like, and type H to see the various options. Okay, so now let us just type H and अब देखो कि कितने सारे यहाँ पे ऑप्शंस है। नाउ जस्ट अ सेकेंड, आई विल जस्ट टेक
a bit of a break, have some quick break. Okay, fine, then we'll continue. Okay, so I just had my quick break and now I'm back. सो वही चीज़ है कि मैंने आपको जो बोला था कि इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पे रखे हुए हैं. सो जस्ट इफ़ यू वांट टू रीड एवरीथिंग, जस्ट पॉज द वीडियो एंड हैव अ लुक टू इट. आई एम जस्ट मिनिमाइजिंग माई सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि दिस इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग. आप यहाँ पे देखो कि हम जैसे अपने CMD से जैसे एक एक कलर यहाँ पे मॉडिफाई करते थे, वो तो हम यहाँ पे कर ही सकते हैं. और उसके लिए मैंने यहाँ पे सारे हेक्स कोड जो उसके लिए थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किए हुए हैं. और उसका यूसेज अगर आपको सिंपल यूज़ करना है तो उसका यूसेज मैंने यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, कि आपको सिंपल कलर मॉडिफाई करना है तो वो आप यहाँ से ऐसे इस तरह से कर सकते हो, जैसे हम सिंपल वो CMD से करते थे वैसे. ठीक है, now the things get really very interesting when you come to the special commands. देखा, तो देखो फर्स्ट कमांड मैंने यहाँ पे दिया हुआ है डिफ़ॉल्ट. ठीक है, तो हम विल जस्ट यूज़ दिस. और ये सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए आपको, मतलब ये सारे स्पेशल कमांड यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है. सो फर्स्ट यू हैव टू टाइप दिस यूज़ कीवर्ड, और उसके बाद अगर आपको डिफ़ॉल्ट यूज़ करना है देन यू हैव टू टाइप यूज़ डिफ़ॉल्ट in capital letters or small letters, that does not matter at all, but yes you have to type that. Fine. और आप यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर देख सकते हो सारी कमांड्स का. और यू कैन यूज़ द सेम कि आपको अगर डिफ़ॉल्ट यूज़ करना है देन यू कैन यूज़ 1 फॉर डिफ़ॉल्ट. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज़ विल जस्ट यूज़ द शॉर्टकट्स एंड विल गो फर्दर. ठीक है, क्योंकि देखो जब आप आगे आगे जाओगे तब काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी कमांड्स. और ये मैंने इसके लिए रखी है क्योंकि आपको समझ में आए कि आप क्या कर रहे हो ये सारी चीज़ें. इसलिए अभी पहले से ही शुरू करते हैं कि फर्स्ट विल यूज़ 1 एंड देन लेट अस सी व्हाट हैपेंस. तो आपने देखा ब्लैक स्क्रीन हमारी हो गई और वाइट हमारा फोरग्राउंड कलर हो गया. अगर मतलब आपको अगर याद नहीं था कि आपका डिफ़ॉल्ट कलर क्या था और आप भूल गए हो, किसी ने मॉडिफाई कर दिया गलती से, तो आप डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हो, यूज़ 1 करके या फिर यूज़ डिफ़ॉल्ट करके. फिर अगर आपको स्वैप करना हो कलर, कि अगर यहाँ पे देखो अभी फोरग्राउंड कलर जो हमारा है, मतलब कि टेक्स्ट का जो यहाँ पे कलर है वो हमारा वाइट है और बैकग्राउंड का कलर है वो हमारा ब्लैक है. ठीक है, तो हम इसको अगर स्वैप करना चाहते हैं कलर्स, तो हम विल सिंपली यूज़ 2 एंड द कलर विल बी स्वैप्ड. आप देख सकते हो कि हमारा बैकग्राउंड का कलर अभी वाइट हो गया और जो फोरग्राउंड का कलर था, मतलब कि हमारा टेक्स्ट का कलर, वो अभी ब्लैक हो गया. ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि वी वांट सम रैंडम फोरग्राउंड, मतलब हमारा ये बैकग्राउंड जो है वाइट वो सेम रहना चाहिए और हमारा फोरग्राउंड मतलब कि हमारे टेक्स्ट का कलर है दैट शुड बी डिफरेंट. सो वी विल सिंपली यूज़ 3 एंड विल प्रेस एंटर. देख सकते हो आप हमारा फोरग्राउंड कलर हर बार चेंज हो रहा है, जितनी भी बार मैं यूज़ 3 कर रहा हूँ हर बार वो चेंज होता जा रहा है. ठीक है, देख सकते हो आप. देखो आपको ना अभी थोड़ा बहुत चेंजेस नोटिसेबल कोई कोई बार नहीं लगेगा क्योंकि वो डार्क है और कोई कोई बार वो लाइट हो जा रहा है इसलिए. ठीक है, अभी हम देखते हैं आगे की कमांड्स. ठीक है, आगे मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि रैंडम फोरग्राउंड विथ ब्लैक बैकग्राउंड, मतलब फोरग्राउंड हमारा चेंज होना चाहिए लेकिन हमारा बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक हो जाए और उसके बाद हमारा फोरग्राउंड चेंज होता रहे भले. तो हम 4 यूज़ करते हैं उसके लिए. देन लेट अस टाइप यूज़ 4. देखो ब्लैक बैकग्राउंड हमारा हो गया, तो उसके बाद हमारा फोरग्राउंड चेंज होता जाएगा जितनी भी बार हम फोर यूज़ करेंगे. देखो 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 देखो, दिस इज डन रैंडमली. ठीक है, देर इज नो सच थिंग कि मैंने सीक्वेंस में रखा है और उस सीक्वेंस की तरह से ये चलता जा रहा है. इट इज़ यूजिंग रैंडमली. ठीक है, सो कीप द थिंग इन. फिर मैंने यहाँ पे क्या एक और चीज़ दी हुई है कि इट इज़ कॉल्ड रैंडम बैकग्राउंड. अभी इसमें क्या होगा कि हमारा जो फोरग्राउंड कलर है टेक्स्ट का रेड कलर है दैट विल बी रेड फॉर नाउ, और रैंडमली हमारा बैकग्राउंड चेंज होता जाएगा हर बार. तो आप देख सकते हो कि उसके लिए 5 है. सो लेट अस यूज़ 5. देखो हर बार बैकग्राउंड चेंज होता जाएगा. देखो 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 देखो, है ना इंटरेस्टिंग, मतलब मज़ा आ गया ना ये चीज़, मतलब देख के ये आपने शायद से पहले कभी नहीं देखा हो ऐसा. फाइन, चलो अभी मूविंग फर्दर. रैंडम कमांड. अभी ये रैंडम कमांड क्या करेगी कि इट विल
रेंडमाइज एवरीथिंग कि बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देगी, फोरग्राउंड कलर भी चेंज कर देगी, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि बैकग्राउंड भी चेंज होता जाएगा, फोरग्राउंड भी चेंज होता जाएगा हर बार के लिए, मतलब आप पता ही नहीं चलेगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यूज सिक्स देखो दोनों चीज़ें चेंज हो रही है, और मतलब कुछ भी सिक्वेंशियल नहीं हो रहा है यार, कुछ भी होता है, कुछ भी कई बार सेम भी हो जाएगा, ऐसी भी कंडीशन एराइज होती है। देखो मतलब मज़ा ही आ जाएगा। आप कुछ भी ना करो इससे, लेकिन ये चीज़ आप ट्राई करोगे ना तो आपको मज़ा। अब देखो, आप ऐसी कंडीशन अगर होती कि अभी नथिंग इज रीडेबल, right now I am not expecting that you could be able to read anything in this format, then we will simply use one to get back to our defaults, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। अभी ये तीन कमांड्स है ना भाई साहब, वो तो गजब है। अब ये तीनों कमांड्स मैंने यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि इट विल कंटिन्यूसली चेंज फोरग्राउंड कलर इन ए रैंडम मैनर, इट विल कंटिन्यूसली चेंज बैकग्राउंड कलर इन ए रैंडम मैनर। ये आपको अगर ट्राई करना हो तो आप कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे जो बोला ना कंटिन्यूसली, आई मीन व्हाट आई राइट। आई मतलब कंटिन्यूसली, मतलब कंटिन्यूसली ही चेंज होता रहेगा। और सबसे ज़्यादा कूल जो है ना वो ये चीज़ है कि दोनों चीज़ें रैंडमली चेंज होती रहेगी, दोनों चीज़ें, और वो भी इन ए कंटिन्यूअस मैनर और इन ए रैंडम, इन ए रैंडम मैनर। तो अभी ये दोनों चीज़ आपको कोई ट्राई करने हो, देन यू कैन ऑलवेज ट्राई इट इफ़ यू वांट। वो मैंने आपको गिटअप रिपोजिटरी की लिंक भी यहाँ पे दी हुई है, सो यू कैन यूज़ दैट। और अभी के लिए मैं आपको ये चीज़ करके दिखाता हूँ। तो देखो, यूज़ नाइट, देखो हर एक सेकंड के बाद वो कोई भी कलर चेंज करता रहेगा। आप देख सकते हो, हाउ कूल इज दिस। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और आपको जो भी ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं वो आप कर सकते हो ऑन गोइंगली, कलर चेंज होता रहेगा, और आपको जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो आप कर सकते हो। अब ये चीज़ जिसको इसके सब कंसेप्ट के बारे में जानना है तो मैंने यहाँ पे जावा थ्रेड्स का यूज़ किया है। इसीलिए मैं मतलब इसके पीछे बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था कि मुझे इसके लिए थ्रेड्स का कंसेप्ट अच्छे से जानना था। लेकिन इसमें अभी भी थोड़े बहुत इश्यूज़ है कि आई हैव टू जस्ट क्लोज इट व्हेन आई एम इन इट ओनली, क्योंकि अगर मैं इसके बाहर चला जाता हूँ तो फिर मैं इसको बंद नहीं कर पाता हूँ, तो वो इश्यू भी मुझे अभी रिजॉल्व करना बाकी है। तो अगेन, जिसको भी जो भी मेरे से ज़्यादा जानते हैं, एंड प्लीज़ डू हेल्प इफ़ यू फाइंड इट रियली अमेजिंग, ठीक है। हाँ, तो देखो ये सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई है। अब जिनको नहीं पता था उसके लिए तो मतलब सोने पे सुहागा ही है ये, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। क्योंकि यस इट इज़, देखो मैं कुछ अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने मेहनत की है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन लिटरली मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को भी अच्छा लग ही रहा होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा किसी ने पहले अगर ट्राई किया हो तो ठीक है, लेकिन आई हैव नेवर फाउंड इट एनीथिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड ऑल दिस combinations I did not find anywhere on the net also. I just thought it, and uh, uh, I just mm, I just worked for it very hard. I thought for each and every function, and I just made it. It really took me all my 2 months of it, and then finally I resulted into this good project of mine. So fine. So that was it. What I had to say. आई एम सॉरी फॉर दिस, बट हाँ, सो अभी मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने आपको पहले बताया था कि आप कंसोल में चले जाते हो, तो आपको अगर मेन कंसोल में वापस जाना हो तो आप क्या यूज़ करोगे, तो आप यूज़ करोगे। हाँ, अब उसके पहले हम क्या करते हैं ना, थोड़ा बहुत रेंडमाइज कर देते हैं फोरग्राउंड कर। तो फोरग्राउंड के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको 3 यूज़ करना है, ठीक है। तो हाँ, अभी देखो, अभी आप डेडिकेटेडली मॉडिफाई करने के लिए आए हो कलर, तो मैंने आपको बोला था किसी लो आर कलर यूज़ करो। उसके बाद लेट्स से हमें लाइट पिंक और ब्लैक बैकग्राउंड रख, या फिर हम वाइट बैकग्राउंड, फुल वाइट बैकग्राउंड रखते हैं, इसके लिए एफ और हम सी प्रेस करते हैं। तो देखो वाइट बैकग्राउंड हो गया और हमारा पिंक कलर हो गया, काफ़ी अच्छा दिख रहा है अभी। तो हमें यही रखना है,
और लेट्स से हमको अभी मेन कंसोल में वापस जाना है। तो मेन कंसोल में वापस जाने के लिए हमें क्या करना था, तो हमें बैक जाना था। तो या तो हम बी ए सीख के बैक लिखे या तो हम ज़ीरो लिखे, बोथ विल वर्क फाइन। अभी के लिए मैंने ज़ीरो रख दिया और उसके बाद हम डायरेक्ट देखो यहाँ पे कलर मॉडिफिकेशन था ना, वो कलर मॉडिफिकेशन हट के सिर्फ ये तीन एरोज आ गए। तीन एरोज मतलब हमारा मेन कंसोल, रूट कंसोल। इसके बाद ये जब आ जाता है तब हम ये कंसोल में, ठीक है। नाउ द पावर्स हैव गॉट बैक, राजा के पास फिर से वापस आ गया पावर, ठीक है। फाइन, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या करेंगे, हमें अगर ये वाला जो ये हमारा हमारा टाइटल है वो मॉडिफाई करना है। तो टाइटल मॉडिफाई करने के लिए व्हाट वी विल डू, विल से 5 देन TITLE टाइटल। सो यस, यू कैन सी नाउ वेयर वी आर। आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन से कंसोल में हो, तो आपको यहाँ से पता चलेगा जस्ट बाय सीइंग द टेक्स्ट बिटवीन दिस बोथ स्क्वायर प्लेसेस कि आप कहाँ पे हो। तो अभी के लिए आप टाइटल मॉडिफिकेशन कंसोल में हैं। अब आपको नहीं पता है कि आपको कैसे करना है, देन यू जस्ट ऑलवेज, जब भी आपको कुछ भी पता ना चले, जस्ट टाइप H फॉर द सेम एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द हेल्प, ठीक है, हेल्प कमांड फॉर द सेम। अभी यहाँ पे हेल्प कमांड में क्या बता रहा है कि भाई आप टी लिखो और उसके बाद आप अपना नेम नेम लिख दो। नेम मतलब एनी नेम मैंने यहाँ पे बोला है कि आपको जो भी यहाँ पे टाइटल का नाम देना है वो आप दे सकते हो। तो अभी के लिए लेट्स से मैं यहाँ पे टी लिख के माई ट्राई अभी, हाँ अभी एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग कुछ अगर नाम रखना हो तो क्या रखें हम। हम्म, छोड़ो, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, हम अभी के लिए सिर्फ वाई भी लिख देते हैं, वाई टी लिख देते हैं लेट्स से। तो देखो यहाँ पे आप देखो, देख सकते हो वाई टी आ गया है यहाँ पे, ठीक है, वाई टी आ गया। अभी बस हमारा काम तो यहाँ पे हो गया। फिर से हम, अभी हमने ज़ीरो तो ट्राई किया हुआ था, अभी हम बैक ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो बैक ट्राई किया, वापस से हम देखो मेन कंसोल में आ गए। अभी हमें मॉडिफाई करना है ये हमारे मेन कंसोल का प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, विल टाइप फाई एंड विल टाइप PROMPT प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो देखो अभी हम कहाँ पे आ गए, अभी हम प्रॉम्प्ट मॉडिफिकेशन कंसोल में आ गए। प्रॉम्प्ट मॉडिफिकेशन कंसोल में भी हमें पता नहीं है क्या करना है, विल टाइप H एंड विल सी व्हाट इज द यूज, व्हाट हाउ द यूज केसेस आर एंड हाउ इट इज यूज। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि आइदर यू टाइप P और आइदर यू टाइप प्रॉम्प्ट एंड देन यू टाइप द डिज़ाइन यू वांट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कैसी डिज़ाइन रखी है अच्छी, ABC@XYZ और फिर डॉलर की साइन। अब जो भी लिनक्स यूज़र है ना उसको यहाँ पे पता चलता होगा कि व्हाट हैव रिटन, और जो नहीं है उनको नहीं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप लिनक्स एनवायरनमेंट यूज़ करोगे तो इस तरह से होता है कि यहाँ पे आपका पीसी का नाम होता है और यहाँ पे आपका यूज़र, जो भी यूज़र होता है उसका नाम होता है, या फिर वाइस वर्सा होता है, आई एम नॉट श्योर बट ऐसा होता है, ठीक है। ओके फाइन। सो अभी आपको जो भी प्रॉम्प्ट देना है वो आप दे सकते हो। अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ कि लेट्स से YT और @ ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे मैंने @ लिखा है इसलिए यहाँ पे @ लिखो। आपको यहाँ पे डॉलर साइन लिखनी है, आप डॉलर साइन लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसा कर दोगे, आप देखो यहाँ पे चेंज हो गया, YT डॉलर साइन चेंज हो गया, स्पेस के बाद यहाँ पे जो भी हम कंसोल में है वो हो गया, ठीक है। फिर आप मतलब थोड़ा बहुत अभी आपको चेंज करना हो मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे लेट्स से मेरा नाम लिख दिया JEET, फिर मैंने लिख दिया @ फिर मैंने लिख दिया UNDAVIY @ और फिर मैंने लेट्स से यहाँ पे हैश लिख दिया और उसके बाद लेट्स से मैंने यहाँ पे टिल्डेड का साइन लगा दिया। मुझे ऐसा चाहिए तो आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। जब आपको जैसा भी करना हो यू कैन ऑलवेज डू दैट, यू कैन ऑलवेज डू लाइक दैट, ठीक है। सो यस, और हाँ एक और चीज़ कि नाउ व्हेन यू विल प्रेस बैक और यू विल गो बैक इनटू योर मेन कंसोल, यस योर प्रॉम्प्ट विल बी सेव्ड। आपका टाइटल भी यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे YT यहाँ पे रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे आपका ये जो प्रॉम्प्ट भी है यहाँ पे रहा है, व्हेन यू विल टाइप H यू विल गेट द हेल्प फॉर द सेम। आप देख सकते हो आपको यहाँ पे हेल्प मिल गई है। आप जो भी चीज़ यहाँ पे आप करना चाहते थे वो आप अभी भी कर सकते हो विथ योर मॉडिफाइड एवरीथिंग। अभी मान लो कि आपके दोस्त ने बहुत गंदा यहाँ पे मॉडिफिकेशन कुछ भी किया है, यहाँ पे आपका ये प्रॉम्प्ट बदल के यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे ऐसे ही ब्लैंक रख दिया आपका प्रॉम्प्ट। फिर आपका यहाँ पे टाइटल जो है वो टाइटल ब्लैंक ब्लैंक रख दिया है, और कलर जो है वो
कुछ भी ऐसे एरा गेरा रख दिया है जो आपको लगे कि अरे ये तो कुछ बंद हो गया है फिर ऐसा हो गया, तो कभी भी आप ऐसी कंडीशन में अराइज होते हो, देन व्हाट यू हैव टू डू, आइदर यू हैव टू से फाई और यू विल जस्ट टाइप मॉडिफाई ऑफ, और देखो एवरीथिंग इज नाउ सेट टू डिफॉल्ट। देखो हमारा प्रॉम्प्ट बदल के वापस हमारा जो भी प्रॉम्प्ट था वो आ गया, फिर हमारा जो टाइटल था वो हमारा लेजी बिस्ट हो गया। और देखो यहाँ पे ना कंफ्यूज कुछ भी मत होना, क्योंकि हाँ देखो जो भी हमारा डिफ़ॉल्ट था ना, दैट डिफ़ॉल्ट वाज अवर हाँ देखो वो जो हमारा डिफ़ॉल्ट था ना वो हमारा ब्लैक और वाइट ही कलर था, इसलिए अब ब्लैक एंड वाइट आ रहा है। मैंने मेरे डिफ़ॉल्ट कलर के लिए वो ब्लू एक्वा रखा था इसलिए, लेकिन फॉर नाउ द कलर इज सेट। और अभी आधे लोगों को ना थोड़ा बहुत मन में डाउट हो रहा होगा कि जब भी मैं ऐसे करता हूँ तो यहाँ पे सिलेक्ट आ जाता है और यहाँ पे ये टाइटल सिलेक्ट आ जाता है, तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि बेसिकली आई एम सिलेक्टिंग इट इसीलिए। अब देखो यहाँ पे कुछ भी ऐसे मैं लिखता हूँ ना तो यहाँ से वो सिलेक्ट हट जाएगा कि नाउ आई हैव नॉट सिलेक्टेड एनीथिंग, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होना। फाइन, चलो अभी मूविंग फर्दर, अभी थोड़ा बहुत एक बार पीपीटी में रेफर कर लेते हैं कि हम लोगों ने कहाँ तक कवर किया, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने सब मॉडिफिकेशन चीज़ें तो कवर अप कर लिया। देखो ये मॉडिफाई कंसोल हमने कवर अप कर लिया, फिर हेल्प इन मॉडिफाई कंसोल हमने देखा कि क्या क्या कूल चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे मॉडिफाई किया है कलर्स, आप देख सकते हो। फिर वही हम वापस मेन में कैसे गए, तो हमने यहाँ पे देखो ज़ीरो यूज़ किया और हम मेन कंसोल में वापस चले गए थे। फिर हमने क्या यहाँ पे लिखा है, तो कि हम मॉडिफाई टाइटल कंसोल में आ गए थे और हमने यहाँ पे टाइटल मॉडिफाई किया था। तब के लिए हमने लेट्स से कुछ ना कुछ टाइटल मॉडिफाई किया, हाँ हमने यहाँ पे जावा मिनी प्रोजेक्ट टाइटल को मॉडिफाई किया था। फिर हमने यहाँ पे देखा था, हम प्रॉम्प्ट कंसोल में यहाँ पे हम चले गए थे, मॉडिफाई प्रॉम्प्ट कंसोल में चले गए थे। फिर यहाँ पे उसकी भी हेल्प हमने देखी थी। फिर हमने यहाँ पे मॉडिफाई प्रॉम्प्ट करके भी दिखा था। देखो अभी के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि जावा @ मिनी प्रोजेक्ट, ठीक है। आपको मतलब जो भी यहाँ पे मॉडिफाई करना है वो आप उस तरह से कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया था, हाँ ये हमने नहीं किया था लेकिन तब मैंने क्लियर स्क्रीन की थी। फाइन, और फिर हमने क्या किया था, सब कुछ हमने डिसेबल कर दिया था, क्या करके मॉडिफाई ऑफ करके, और हम वापस मेन कंसोल में आ गए थे, ठीक है। यही चीज़ हमने यहाँ तक अभी तक कवर अप किया। ओके, अभी हम बात करते हैं सिस्टम सीएमडी, मतलब हमारा जो सीएमडी जो है उसकी, तो वो हम कैसे अंदर आएंगे उसके अंदर। तो मैंने अपना जो हमारा जो सीएमडी होता है उसको थोड़ा बहुत और मॉडिफाई किया, मतलब थोड़ा बहुत सिर्फ यहाँ पे लेक्स 7 थोड़ा बहुत टाइटल बदल दिया और वेलकम टेक्स्ट थोड़ा डाल दिया, मतलब थोड़ा अच्छा लगे कि हमारे सॉफ्टवेयर से अगर ओपन करते हो तो उसको क्या रॉयल वाली फीलिंग तो थोड़ी आनी चाहिए ना इसीलिए फाइन, चलो। सो हाँ मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आप ध्यान से देखो कि एग्जीक्यूटिंग द कमांड्स इन द sys cmd एंड रिटर्निंग बैक टू मेन कंसोल। मैंने आपको बोला था ना कि अगर आपको एक कमांड रन करनी हो या फिर एक से ज़्यादा कमांड्स रन करनी हो और आपको वापस मेन में आ जाना हो, तो आप वो कर सकते हो। यहाँ के लिए मैंने अभी क्या किया है, तो आप देखो कि मैंने से cmd लिखा है, उसके बाद यहाँ पे मैंने पिंग और google.com यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे क्या करने की ट्राई ट्राई करते हैं, पहले तो हम यहाँ पे सिर्फ सी एम, हाँ देखो एक और चीज़ कि हमने यहाँ पे ना सिर्फ सी एम डी यहाँ पे लिखा है, तो एक काम करते हैं पहले हम यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर देखते हैं। इंडेक्स नंबर क्या है उसका, 6 है, तो हम या तो 6 या तो सिर्फ सी एम डी लिखना पड़ेगा हमको। तो हम यहाँ पे अभी के लिए 6 लिखते हैं, ठीक है। 6, उसके बाद हम लिखेंगे लेट्स से पिंग google.com, और एक और चीज़ लिखते हैं, and we will also see timing of now, and we will also see date of now, ठीक है। होपफुली इट शुड वर्क फाइन। देखो हाँ देखो पिंक होना चालू हो गया है और उसके बाद मुझे उसने टाइम भी दे दिया, उसके बाद उसने मुझे अभी की डेट भी दे दी, और वापस हम अपने मेन कंसोल में वापस आ गए। मतलब आपको अगर मल्टीपल कमांड्स यहाँ पे टाइप करने हो सिस्टम के कमांड्स, तो वो आप सिस्टम के कमांड्स यहाँ पे मल्टीपल भी टाइप कर सकते हो और वापस अपने मेन कंसोल में आ सकते हो। अब मान लो कि आपको बहुत ज़्यादा काम करना है सी में, और हम आपको ये वाला कंसोल भी लीव नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, you will simply type 6 और
you will say SYSCMD एंड इट शुड वर्क फाइन। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे दिख रहा है कि वेलकम टू CMD एंड आपको जो भी यहाँ पे टाइप करना है वो आप कर सकते हो। लेट्स से आई एम टाइपिंग डी आया, ठीक है, तो मुझे डायरेक्टली में मेरे जो भी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे अभी मिल गई, ठीक है। अभी लेट्स से मुझे ये वाला मेरा बैटरी का रिपोर्ट शायद से ओपन करना हो, देन also I can do that by just if I am not wrong it should start with this thing. Yes, it has started. See, it has started my battery report and showing me that मतलब वो तो मैंने पहले सेव की हुई थी। मतलब आप समझ रहे हो कि आपको जो चीज़ें अच्छे से आपको सिस्टम CMD से ही कर सकते हो, वो भी आप चीज़ें मेरे वाले कंसोल से सिस्टम CMD में जाके कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने देखो कि मेरा वो जो प्रॉम्प्ट था वो बदल दिया है, कि मैंने इसको भी एक कंसोल ही बना दिया है मेरे खुद का, कि देखो हम अभी सिस CMD में जा चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने रखा है कि अब देखो अब वापस आपको अगर जाना हो तो आप क्या करोगे, यू विल सिंपली टाइप 0 एंड यू विल बी बैक टू अवर मेन कंसोल। आ गए वापस। अभी मान लो कि आपको यहाँ पे ये वाला कंसोल ऐसे ही रहने देना है, और पहले तो हम इसको क्लियर अप कर देते हैं, थोड़ा वन टाइप किया क्लियर अप हो गया। फिर अगर अभी लेट्स से कि हमको ये वाला कंसोल ऐसे ही रखना है लेज़ी बिस्ट का, और हमें बाजू में कोई एक नया सिस्टम CMD खोलना है, तो हम क्या करेंगे, वी विल सिंपली टाइप 6, क्योंकि 6 सिस्टम CMD के लिए है। उसके बाद -n फॉर टाइपिंग फॉर ओपनिंग द सिस्टम CMD इन न्यू विंडो। I have pressed enter and you can see we are entered into system CMD, and we can basically run every command which we were running till now. We can do cd dot dot. We have gone to the previous directory, and I can show you by just doing the dir that you can see the contents of it. There are a lot many, so I'm not showing you much, but yes, basically you can, let's say if you want to type ping, then ping google.com। देखो it works pretty well, it works pretty fine, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें आपको जो भी करनी हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। अभी एक और चीज़ मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ कब से, वो आपको अभी दिखाता हूँ मैं। सारी फालतू की चीज़ें मैं थोड़ा बंद कर देता हूँ फॉर नाउ। ओके, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम हियर्स माय फेस। ओके, नो प्रॉब्स। इसको काम करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, और यहाँ पे हम ये ओपन कर लेते हैं हमारा लेज़ी लिस्ट, ठीक है। और मेरा वाला फेस भी थोड़ा बहुत यहाँ पे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब आप देखो मैं अभी क्या करने जाने वाला हूँ, ये जो मेरा सिस्टम CMD का प्रोग्राम मेरे बाजू में खुला हुआ है, दैट आई एम गोइंग टू क्लोज इट, नॉट बाय प्रेसिंग दिस, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये तो एक केस के लिए बात हुई। लेकिन मान लो कि आपके पास ऐसे 100 सिस्टम CMD आपने खोल के, मतलब 100 तो बहुत ज़्यादा हो गया है, ये तो मैंने आपको बहुत पहले, मतलब बहुत ज़्यादा का मैंने आपको बता दिया है। लेकिन चलो अभी के लिए सिर्फ एक के लिए फोकस करते हैं। अगर ज़्यादा हो गए तो मैंने आपको बताया था कि डैश ऑल करके आपको करना है, तो आप वो सारे बंद कर सकते हैं। अभी के लिए इसके ऊपर फोकस करते हैं, तो इसका नाम देखो क्या है, सिस CMD। मैंने इसका यहाँ पे देखो टाइटल रखा हुआ है, अगर आप देख सकते हो तो। एंड इफ़ आई हैव टू क्लोज इट, तो मैं या तो लिखूँगा CLOSE क्लोज, और उसके बाद यहाँ पे मैं ऐसे सिस CMD लिख दूँगा, ये भी चल जाएगा फाइन। लेकिन हम पहले ही मैंने आपको बोला था कि हमारा एम क्या होना चाहिए, कि हमें सिर्फ शॉर्टकट्स याद रखने हैं और उससे हमारा काम हो जाना चाहिए। तो अभी मानो कि आप इसका शॉर्टकट भूल गए हो, यू हैव सिंपली टाइप्ड H and you have resulted into this long help over here, and you are able to see that 3 implies for closing the program। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, यू विल टाइप 3 and you will type system CMD। now case it is, I have not made it case sensitive, so you just have to remember the title, that is it, you need not to type capital S and that all stuff, right? So SYS CMD and that should work fine। see, it has closed, बंद हो गया वो चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ है। सिस्टम CMD हमने कवर अप कर लिया है। नाउ लेट्स गो बैक टू प्रेजेंटेशन और देख लेते हैं थोड़ा बहुत और इसमें। Okay, so far so good, we have entered into the CMD and we have executed the commands in it, ठीक है, वो हमने देखा। और अभी हमने क्या किया था कि हमने सिस्टम CMD एक नए में खोला था, और देखो आप नए में से भी आपको जो भी चीज़ आपको करनी है वो आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे CALC लिखा था, तो उससे
कैलकुलेटर ओपन हो गया था। वो बेसिकली उसके लिए उसकी कमांड है कैलकुलेटर अगर आपको ओपन करना हो CMD में से, देन यू जस्ट टाइप CALC एंड दैट विल बी ओपन। ठीक है, दैट प्रोग्राम विल बी ओपन। फाइन, ओके। नाउ अभी हमें क्या करना है कि पाइथन कंसोल देखना है, हमें पाइथन कंसोल हमें खोलना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए की कमांड है 7 या तो pycm। ठीक है, तो हम अभी के लिए क्या टाइप करते हैं, 7 टाइप करते हैं और देखो हमारा पाइथन कंसोल यहाँ पे खुल चुका है। तो क्या दिख रहा है, वेलकम टू पाइथन CMD pycmd, और यहाँ से हमारा पाइथन कंसोल शुरू हो गया। नाउ डोंट कंफ्यूज मैंने मेरे मेन कंसोल की भी यहाँ पे साइन यही रखी है और पाइथन के कंसोल की तो ऐसे ही होती है, लेकिन डोंट कंफ्यूज, ये पाइथन का कंसोल है। इफ यू टाइप print print and let's say you are doing 1 plus 3, so it will be result 4। और आपको थोड़ा बहुत कि ये पाइथन का कंसोल ही है वो दिखाने के लिए, अभी जिसको इसके बारे में नहीं पता उसके लिए बेनिफिट पॉइंट हो जाएगा कि ऐसे एक OS मॉड्यूल है पाइथन में, और वो OS मॉड्यूल बेसिकली कैन रन एनी ऑफ द OS कमांड्स। ठीक है, so for now I am just importing it, import OS, and OS dot system is the function, or let's say we want to clear up the screen, this console screen। ठीक है, ये पाइथन के कंसोल की स्क्रीन में क्लियर कर रहे हो, तो बाय अगर आप ये कंसोल में हो तो आप ये नहीं कर सकते हो, लेकिन व्हेन यू आर इम्प्लीमेंटिंग दिस OS मॉड्यूल यू विल बी एबल टू डू दिस। अभी मैंने क्या रन किया था, CLS रन किया था। अभी लेट्स से मुझे यहाँ पे कलर चेंज करके, लेट्स से मुझे नहीं ग्रीन करना है। ठीक है, then I will type 2 and my color will be changed to green। तो आपको पाइथन के कंसोल में से भी कलर चेंज करना हो तो आप कर सकते हो, बट हाँ एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि ये पाइथन का कंसोल है। अब यहाँ से आप वो मेरे वाले कंसोल के मॉडिफिकेशंस पैरामीटर आप यहाँ से रन नहीं कर सकोगे, दिस इज ए टोटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, ये पाइथन का कंसोल ही है। ठीक है, सो डोंट कंफ्यूज। आपको यहाँ पे आप जो भी पाइथन के फंक्शन जैसे आप अलग से DEF करके SYS करके आप ऐसे कोई भी आप अगर फंक्शंस बनाते थे, देन यू विल बी एबल टू मेक दैट फंक्शन। लेट्स से फॉर नाउ आई एम जस्ट प्रिंटिंग hello guys, fine, and I will just press enter, and देखो यहाँ पे एक एरर आ गया है, and what is that error, so that is indentation block is expected over here। ठीक है, so just to show you, just to prove you that this is Python only, I made this mistake, and आपको दिख सकता है कि I just had to type tab over here and then write it, so I did not write it, और यहाँ पे एक एरर आ गया। फाइन, सो यही है पाइथन कंसोल। और इफ़ आई विल जस्ट राइट एग्जिट, देन इट विल नॉट एग्जिट, क्योंकि यहाँ पे एग्जिट फंक्शन हमें चाहिए। एग्जिट फंक्शन आप जैसे यूज़ करोगे आप एक डिफ़ॉल्ट कंसोल में वापस आ जाओगे। आप जब भी ओपन करते हो ना पाइथन कंसोल, तो आप क्या करते हो कि आप CMD में जाते हो और यहाँ पे आप PYTHON पाइथन लिखोगे, तो पाइथन कंसोल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ऐसे देखो यहाँ पे 3.8 पाइथन, और पाइथन कंसोल हमारा फिर से ओपन हो गया। या फिर आप अपने स्टार्ट बटन में जाओगे, वहाँ पे आप पाइथन लिखोगे तो आपका पाइथन कंसोल का प्रोग्राम मिल जाएगा, आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए ये है, और इसको भी अगर आपको क्लोज़ करना है तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट क्लोज़ कर सकते हो। ये भी देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, दिस इज इट। फिर से हाय ठीक है, चलो लेट्स से वी आर राइटिंग 3 एंड वी आर सेइंग pycmd, एंड देखो ये क्लोज हो गया। तो ये चीज़ थी पाइथन के लिए कि पाइथन CMD आप ऐसे ओपन कर सकते हो। फिर यस, देन ओपनिंग द 7-zip। नाउ देखो 7-zip में मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको अगर कमांड लाइन अच्छे से अगर आता है तो आप वो भी उसके भी यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से पैरामीटर्स और उसकी कमांड यहाँ पे मैंने आपको लिख के दे दिया कि आपको कैसे करना है वो। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे फाइल मैनेजर ओपन करके भी आप कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं आपको सिंपल चीज़ दिखा देता हूँ, बाकी आप
ये मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसा ही है, इसको कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप एक बार ट्राई करोगे ना तो ये भी हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना। अब एक ये मैंने यहाँ पे क्या सिर्फ लिखा है, यहाँ पे मैंने 8 लिखा है, एंड वंस आई विल प्रेस दिस 8 इट शुड वर्क फाइन। यस एंड इट हैज़ वर्क फाइन। ये देखो एक पूरा एक नई विंडो खुल के आ गई, और यहाँ पे आई कैन जस्ट locate the locate the what you can say, the location where I want to go for my directory and my files to just I'll just select it, and then if I want, then I can rather just um, compress it in any format I want, ठीक है। ये भी एक फाइल मैनेजर ये 7-zip का, तो आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हो। यहाँ पे आप ऐड के ऊपर क्लिक करो, और उसके बाद मतलब जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हो। कहने की वो चीज़ है, थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा इसमें, वो आप देख लेना अपने आप से। अभी जैसे ऑलरेडी ये ह्यूज वीडियो मुझे पता है, लेकिन बस थोड़ी चीज़ें बाकी है अभी। फाइन, so moving further, yes, now opening this netman, so we will just, this is also a juicy part for the system folks, ठीक है, जो उसको भी नेटवर्किंग के बारे में अच्छा लगता है, नेटवर्किंग की कमांड्स यूज़ करना और वो सारी चीज़ें, तो उनको बहुत ज़्यादा इसमें ये चीज़ बेनिफिशियल रहेगी कि जस्ट बाय शॉर्टकट्स यू विल बी एबल टू रन दिस। तो पहले हम क्या यहाँ पे मेनू ही ओपन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ओपन मेनू ओपन किया था, इसी तरह से यहाँ पे मैंने क्या लिखा 9, और उसके बाद मैंने -m लिखा। 9 किसके लिए है, तो कि सिसनेट के लिए। ओके, सो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 14 कमांड्स, मैंने आपको 13 बताया था, लेकिन यस देयर इज़ वन मोर एडिशनल कमांड। यहाँ पे बेसिकली ये पावर कॉन्फ़िगर एंड इट इज़ नॉट नेटवर्किंग कमांड, बट आई हैव जस्ट एडेड इट बिकॉज इट इज़ क्वाइट यूजफुल कमांड, ठीक है। ओके, सो आप यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग रन कर सकते हो, नेटस्टेट रन कर सकते हो, ट्रेस आरटी रन कर सकते हो, पिंग रन कर सकते हो, पाथ पिंग रन कर सकते हो, टेलनेट यूज़ कर सकते हो, एफटीपी यूज़ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे टेलनेट और एफटीपी में क्या होता है कि एक कंसोल बन के आ जाता है, तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं ना वो एक नई विंडो में शुरू हो जाएगी, क्योंकि सी आफ्टर ऑल इट इज़ ए प्रोग्राम, तो इसमें भी मतलब दिक्कत कहीं पे भी ना है, वो चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसी जहाँ पे भी हमें ऐसा लगा, वहाँ पे हमने क्या थोड़ा बहुत पहले से ही प्रिकॉशंस ले लिए। फाइन, अभी के लिए लेट्स से आई वांट टू जस्ट पिंग google.com अगेन, जस्ट आई विल टाइप 9, और उसके बाद मैं पिंग का यहाँ पे नंबर लिखूँगा, इट इज़ 4, हमने लिख दिया 4, और यहाँ पे उसके बाद मैंने लिख दिया google.com, ठीक है। आई एम जस्ट प्रेसिंग एंटर, इट विल रन ping command and it will return back to the main console, ठीक है। तो ऐसी चीज़ आपको यहाँ पे जो भी करना, लेट्स से हमें ns लुकअप करना है google.com के लिए, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे लेट्स से 9 और यहाँ पे हमने 10 कर दिया, और ऐसे अगर हमने एंटर कर दिया, तो देखो ये तो मेरा जो डिफ़ॉल्ट एड्रेस आईपी एड्रेस होता है मेरे राउटर का, वही है। लेकिन जनरली देखो यहाँ पे भी एक चीज़, यहाँ पे देखो ये एरर है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लूप में चला गया है, इट विल कीप ब्लिंकिंग ऑन। तो थिंग इज़ के ये सारी चीज़ें इसमें थोड़ी बहुत अभी दिक्कत आती है, तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या करना है, यू अगेन हैड टू जस्ट रीस्टार्ट दिस थिंग। जब भी ऐसी एरर आए तो आपको रीस्टार्ट करना है, और यू विल प्रेस 9, और अगर आपको जो भी कमांड के लिए जो भी वेबसाइट के लिए आपको देखना था ns लुकअप, वो आप कर दो। तो हमें google.com के लिए देखना था, तो google.com, ठीक है। देखो तो दैट वर्क्स प्रीटी फाइन, हमने पहले यहाँ पे नहीं दिया था, और अगर आपको सिर्फ cmd में करते देन इट वुड हैव वर्कड फाइन, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, जैसे करना है वैसे ही करना है, ठीक है। ओके, सो यस दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर इट, और देख लेते और कुछ हमारे में बाकी ना रह गया, तो यस एग्जीक्यूटिंग द सिस्टनेट कमांड्स वो हमने देखा अभी अभी। और हाँ, लोग फाइल्स ये सारे के सारे मेंटेन करता है, वो मैंने आपको बताया था पहले, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हाउ इट मेंटेन्स ऑल दैट फाइल्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो जो आपका मेन फोल्डर जो होगा ना सिस्टमेट का, उसमें एक लॉग करके होगा,
और उसमें लॉग्स डॉट टेक्स्ट फाइल यहाँ पे जनरेट हुई होगी। अब ये तो आप देख सकते हो कि कितना पुराना है, 1909 2020 वहाँ से जब मैं ये प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट कर रहा था तब से ये मैंने पूरे के पूरे यहाँ पे लॉग्स उसके जनरेट होके रखे। और अभी लास्ट में आप देखो अभी के रात के मतलब 11 बजे है, आई मीन 2 2 बज के 11 मिनट हुई है, मुझे इतनी नींद आ रही है, आई एम नॉट एबल टू स्पीक ऑल्सो, बट ओके फाइन। तो हमने देखो लास्ट में क्या रन किया था, हमने रन किया था 9, उसके बाद 10 और उसके बाद google.com हमने अपना ns लुकअप परफॉर्म किया था। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि वी प्रेस 9 then we entered 10 into it and then we just ns परफॉर्म ns लुकअप फॉर google.com। उसके पहले हमने क्या किया था, पिंग किया था ns लुकअप को, देन दैट विल बी अल्सो देयर, देखो यहाँ पे है ना, ये 9 then 4 then google.com था। उसके बाद हमने जब 9 10 परफॉर्म किया था तब वो अटक गया था, ठीक है, फिर वो लॉग आउट हो गया था, मतलब बंद हो गया था। तो फिर से नया जब से लॉगिन होगा तभी भी आएगा, देखो ये लॉगिन हमने बाद में फिर से किया था। तो एक चीज़ से अच्छा भी हो गया कि आपको देखने के लिए भी मिल गया कि अगर लॉगिन होता है तभी भी ये उसका टाइम और वो सारी चीज़ें मेंशन कर देता है, और आप कौन से कंसोल में जाते हो वो भी वो मेंशन कर देगा। अगर आप मॉडिफिकेशन कंसोल में गए तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन कंसोल का भी लॉगिन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे लॉग्स इस तरह से यहाँ पे मेंटेन भी होते हैं। For now I'm just closing this, and yes, I mean that was pretty much it for this. And if now anyone wants to leave, they can leave. Now I will just explain. I, again, I just forgot. This is not the session anymore. Like, fine, hota hai. This is just my starting, so it's fine. If it is like it, fine. चलो. So who should really care this about? मतलब किसको इसके बारे मतलब ये किसको हेल्पफुल हो सकता है आफ्टर ऑल, ठीक है। तो देखो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना, दैट ऑल थिंग्स इज मॉडिफाइबल, ठीक है। आई हैव जस्ट रिटर्न द फंक्शंस एंड द java files for everything, and I have kept it in a different in a folder, and just I'm able to access that, right? So whenever I just want to add up the new feature, I can always write the new file and just link it to the another main java file, and I can use that function, right? So if you, let's say if you want to use for some specific purpose के अगर ऐसी कंडीशन कभी भी अराइज हो सकती है कि let's say आपने कोई ऐसी इवेंट रखी हो, ठीक है, और वो इवेंट में आपको बन सकता है कि आपको कंसोल का यूज़ करना हो, तो कोई भी जो मतलब काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बच्चा होगा वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। आप समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ही कैन एक्सेस टू एनीथिंग बाय जस्ट टाइपिंग फ्यू सेट ऑफ कमांड्स। तो अगर वो कमांड्स आपको रिस्ट्रिक्ट करनी हो, देन यू कैन यूज़ दिस मॉडिफाइबल कंसोल। उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा आप सिक्योर भी बना सकते हो उस तरह से कि आपको जितना बोला जाए उतना ही आप जितना उसमें रखो उतना ही आप रन कर सको, ठीक है, फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस ओनली। दूसरी चीज़ तो मैंने आपको हमने यहाँ पे देखी कि ये बेसिकली हमारा एम था प्रोजेक्ट का, कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी कमांड्स है उसके हम शॉर्टकट्स हमने बनाए हुए हैं, और वो शॉर्टकट से हम काफ़ी ज़्यादा बड़ी कमांड्स हम छोटे से शॉर्टकट्स याद करके कर सकते हैं, ठीक है, बाय रिमेंबरिंग एनी ऑफ दैट। फिर फ्यूचर एनहांसमेंट मैंने आपको जो भी बोला कि ये प्रोजेक्ट मैंने अभी के लिए सिर्फ स्पेसिफिक CMD के लिए बनाया हुआ है, लेकिन आई कैन एक्सटेंड इट फॉर पावर शेल ऑल्सो, फॉर लिनक्स टर्मिनल ऑल्सो, या फिर जिसको भी नहीं पता है वो टर्मेक्स के लिए भी मैं बना सकता हूँ ना। व्हाट इज दिस टर्मेक्स? तो टर्मेक्स इज बेसिकली एंड्रॉयड मोबाइल लिनक्स टाइप कर्नल, ठीक है, कि मोबाइल के लिए भी एक लिनक्स टाइप कर्नल ऐसा प्रोजेक्ट है। तो आप देख सकते हो, आपको अगर डाउनलोड करना है देन यू कैन डाउनलोड दैट फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड यू कैन यूज दैट, यू कैन लर्न अबाउट टर्मेक्स फाइन। और उसके सिवाय इन एडिशन टू दैट देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दिस, बिकॉज एडिशनल फीचर मतलब बढ़ ही सकते हैं इसमें, देयर इज़ नो लिमिट इन दिस, ठीक है। एंड फाइनली कि ये आइडिया मुझे कहाँ से आया, तो फॉर लिनक्स एनवायरनमेंट देर इज़ ए थिंग कॉल्ड दिस लेजी स्क्रिप्ट, ठीक है। लेजी स्क्रिप्ट करके ऐसी स्क्रिप्ट ऑलरेडी किसी ने बनाई हुई है,
लेकिन वो किसके लिए बनाई थी, तो कि वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग और हैकिंग पर्पसेस के लिए बनाई थी, और वो काफ़ी ज़्यादा इजी वे में करने के लिए बनाई हुई थी। मतलब जो भी करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा टूल्स वगैरह एक ही जगह पे उन्होंने डाल के वो चीज़ की हुई थी, ठीक है। सो यस, दैट वाज स्ट्रिक्टली प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड दैट वाज फॉर लिनक्स ओनली। और वो आपको प्रोजेक्ट देखना है तो उसकी मैंने यहाँ पे ये लिंक दी हुई है, यू कैन ऑलवेज गो टू दैट लिंक एंड यू कैन हैव ए लुक टू दैट। और इफ़ यू वांट टू ट्राई समथिंग लाइक दैट, और सिर्फ विंडोज़ के लिए, मतलब इतनी ज़्यादा तो ऑफकोर्स नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत, इससे जो इसमें है वो इसमें नहीं है, इसमें है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, यू कैन पॉइंट आउट द डिफरेंसेस दैट फ्रॉम दैट एंड हैव ए लुक टू my project also for Windows, if you don't want to just install any sort of Linux distros or something like that, you can, yeah, if you just want to kickstart that, how this script would look if you have installed in your Linux distro and how it would work, then if you first want to try for Windows, then always you can head on to LazyBeast from my this GitHub link, and just clone the first repository from there and you can use my project, okay. And yes, at last, thanks a lot for listening me this patiently और अभी तक अगर आप हो तो, and yes, at last I would just like to say that be lazy and keep using LazyBeast. Okay, thanks a lot guys for this patient listening. And if you have got any sort of doubts regarding my project, then you can always post your doubts in the comment section, and I will try my best to reply your doubts. Okay, thanks a lot guys, bye bye.